आज हम लोग स्टार्ट करते हैं, लोग ज्वाइन कर रहे हैं मगर इसके आगे और हम लोग वेट नहीं करना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पे आज लिखा हुआ है, आज की जो मेन टॉपिक है कि अभी तक हम लोग बहुत कुछ सीखे हैं कोर्स में और लोगों को सीखने की बहुत इच्छा है कोर्स के अंदर। तो हमने इसके बाद जो कोर्स की प्लानिंग की है वो एक तरीके के आपको जो सीखना है उस तरीके के आगे के प्लान होते हुए यहाँ पर हमने कोर्स को आगे लेके जाने के लिए प्रयत्न की है। तो जैसे कि हम हर बार स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे मैं इंदुदा को रिक्वेस्ट करता हूँ। तो वो पिछली बार हमने जो किया, यानी कि वाटर क्वालिटी रिलेटेड जो हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं उसको फील्ड में कैसे डिटेक्ट किया जाए, उसको एक इंदुदा आप एक ब्रीफ समरी दे सकते हैं तो अच्छा रहेगा। थैंक यू। Yes, coming. I'll tell you. मैं थोड़ा सा स्लो जाऊंगा आज। हेलो। हाँ दादा, अभी आपकी आवाज सुनाई दे रही है। कैन यू लिसन ऑल? अभी आवाज सुनाई दे रही है। तो मैं आज शुरू करूँ भाई? प्लीज प्लीज शुरू। हाँ जी। दादा आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। आपकी आवाज नहीं आ रही है साहब जी। सेशन में हम लोग जो वो आवाज नहीं आ रही है आपकी। ओ गॉड। हाँ हाँ देखता हूँ। हाँ अभी आ रहा है? हाँ अभी आ रहा है। समथिंग रॉन्ग देन इट आ रहा है। ठीक है ठीक है। तो ठीक, हम तब तो डेटा में ही काम करता हूँ, नेटवर्क भूल जाओ। तो जो देख वही टाइम में हम लोगों ने सीखा था 9 सितंबर को। आमा फील्ड बेस में फील्ड में जाकर કેવી રીતે આપણને ડિટેક્ટ કરી શકીએ એની ઉપર વધારે દઉં અને ત્યાર પછી આપણે બધા વર્ચ્યુઅલી ફિલ્ડમાં ગયા હતા, જે અમારા જો લોકેશન है ત્યાં જોવા માટે કેવી રીતે આપણે કરી શકીએ। તે ચાર વસ્તુ અમે લોકોને શીખે थे લાસ્ટ ટાઈમમાં: કિડની સ્ટોન્સ, ફ્લોરોસિસ, આર્સેનિકોસિસ એન્ડ સિઝનલ વોટરબોર્ન ડિઝીઝेस। आमा किडनी स्टोन ना हिस्ट्री इतिहास बात ये सुंदर काफी कुछ बोला था, लेकिन अत्यारे वो स्टोरी में नहीं जाऊं, खाली इतना में जाऊं छू कि जिसने किया था डॉक्टर मैककैरिसन, उनका इन्हें जो काम होतो ये काम काफी डिटेल में होतो। त्यार પછી ખબર પડે જે કેવી રીતે આપણે જે સ્ટોન હોય कि किडनी ने डिफिकल्ट હોય, આમાં સેલિનિટી વોટર ने આપણે જે એક કારણ હિસાબે લઉં છું वो ठीक છે कि नहीं ये જોવા માટે काफी काम हुआ था। लेकिन આમાં बराबर કરીને देखा गया, एटलीस्ट जूनागढ़ ने જે ટેસ્ટ આપણે કર્યું હતું એમાં ડાયરેક્ટ કોઈ સાબુન મળ્યું નહીં, क्योंकि કિડની સ્ટોન માટે જૂનાગढ़ પછી આપણને પૂરા કોસ્ટલ એરિયામાં પણ કામ કર્યું હતું। એમાં જાણી ગયા જે ડાયટ, ઓક્યુપેશન, પછી વેધર, વોટર, એવી કે પોસ્ચર, मतलब કેવી રીતે માણસ બેસે છે, સુઈ જાય છે, કેવી રીતે કન્ઝમ્પશન હેબિટ્સ जो है, खाने का क्या होता है, पानी કેટલા કન્ઝમ્પશન કરે છે, ये બધું આપણને જાણવું જોઈએ એક કે બાદ એક। ત્યાર પછી એક નિર્ણય તો નહીં શકે તમે અમે લોકોની કિડની સ્ટોન बहुत बड़ा एक रेनल हॉस्पिटल છે નડિયાદમાં, ત્યાં પણ વાત કરી, પણ એક્ઝેક્ટ વન રીઝન થી ના થાય। એટલે પાણીની સંબંધિતે આપણે સોચતા હતા એ કદાચ ઠીક નથી। સો બટ એને એવોઇડ કરવા માટે, એને પ્રિવેન્શન કરવા માટે આપણે વધારે પડતી પાણી પીવાનું, क्योंकि સ્વેટિંગ વધારે થાય ગરમી ટાઈમે। ગુજરાત એરિયા में કોસ્ટલ એરિયા में પાણી વધારે પીવું જ પડે, પણ શું થાય લોકોને ટીડીએસ વધારે હોય એટલે એને સ્વાદ નહીં આવતો, એટલે પણ પાણી એવોઇડ કરે છે। પછી લોકોની જે એક ઓક્યુપેશન હોય એક જગ્યાએ બેસીને કામ કરે, ઊંચું ઊંચું કરીને વોશરૂમમાં નથી જતા એટલે પણ કારણ હતો। એ બી પાણી વધારે પડે એવી રીતે આપણને કરી શકીએ તો થોડું ઘણું આપણને એવોઇડ કરી શકીએ। આને છોડીને પણ માની ખબર જ્યારે
જગા જગા હું કામ કરતો હતો ત્યારે ખબર પડી કે એક ટાઈપની એક્સરસાઇઝ હોય આસન હોય એમાંથી પણ થોડું ઘણું એવોઇડ કરી શકીએ. પછી આપણને ગયા ફ્લુરોસિસ માટે. તો ફ્લુરોસિસ એવી વસ્તુ જેના માટે વધારે હતું જે એક્સેસ ફ્લુરોસિસ ફ્લુરાઇડ શરીરના અંદર જાય અને એને કાઢવાનું કોઈ રાસ્તા ના હોય डिटॉक्सिफिकेशन के साथ साथ जो अंदर रही जाए છે એના કયા કયા અસર થાય. પહેલી અસર થાય બચપનમાં 6 થી 12 વર્ષની અંદર डेंटल फ्लोरोसिस दांतों में. डेंटल फ्लोरोसिस ही मैं बोलूं છું क्योंकि दंतियों फ्लोरोसिस દાંતના અંદર પીલાશપણ હોય ડિફરન્ટ એ આપણે જાણીએ તો જાણવું પડે 100% એ આગળ ઓછું હોય કેલ્શિયમ ઓછું હોય એ લોકોને વધારે અસર કરે. પછી એની જાણકારી કેવી રીતે કરે પહેચાન કેવી રીતે 4 વસ્તુ આપણને શીખવાડ્યું કે નો ડેન્ટલ ફ્લોરોસિસ માઇલ્ડ થોડા હોય મોડરેટ હોય કે સિવિયર હોય એ આપણે એની રેખા જોઈને મતલબ એ આપણને જોતા જોતા શીખીએ છીએ અને શીખવાડીએ ઉપર જઈને કેલ્શિયમ ને ખાઈ કાઢે ફ્લુરાઇડ અને હાડકા ચૂચુડા થઈ જાય અને હાડકાનું ડિફરન્ટ શેપમાં બદલાઈ જાય શરીરને વેઇટ કેરી કરવા માટે એ આપણને જોવા મળે. પણ 15 સાલની ઉપર કે 18 સાલની ઉપર જે માણસના અમે લોકોને જોયા એ લોકો ચેન્જ કરી શકાય એવું નથી. બીજા જોતા ચેન્જ આપણને જોયેલા છે એ 15 ને નીચે હતો અને एक्चुअली લોકોને જાણતા હતા જે રિવર્સિબલ ના થાય. અમે હું પણ એવું જાણતા હતા મને આપણને બધાને એવું જાણતા હતા लेकिन धीरे धीरे આપણને ખબર પડી જે અંદર આપણને એક્સેસ કેલ્શિયમ અને વિટામિન જો ઓછું હોય છે એ ફ્લુરાઇડ ફ્રી પાણી આપી શકાય તો ચેન્જ થાય જગા જગા એની પણ બતાવ્યું. કોઈ અંદરનું બધી હાડકો કોઈ સામે બાજુ આવે જો લોંગ બો હોય ડીચાનું નીચે એ હોય હાથનું પણ એવી રીતે થાય. પછી એને જે ટેસ્ટ કરવાનું હોય ફિલ્ડમાં એ આપણને વધારે જાણવું જોઈએ કે જ્યારે પૂરા શરૂ નહીં થયું હોય એની 3 ટાઈપની એક્સરસાઇઝ કરીને એ 3 ટાઈપની એક્સરસાઇઝ કરી શકે તો જાણો કે અને હજુ એને કોઈ ફ્લોરોસિસ કરીને એનો શરીરમાં તૈયાર નહીં થયો. પણ ના કરી શકે ત્યારે આપણને એમને શીખવાડી શકીએ જે તમે પાણી બદલાવો તમે ન્યુટ્રિશન લાવો તો તમારું થોડું સારું થશે. તમે એવું સુધી નહીં પહોંચાવો એ બધું કરવાનું. જેમ કે પાક સુધી ટચ કરો પોઈન્ટ ઉઠાવો ફ્લોરમાંથી એન્ડ હાથ લઈ જાઓ પાછા નેક સુધી તો કરી શકાય તો સારું ના કરી શકાય તો એને જાણકારી આપવું પડે. નોન સ્કેલેટલ ફ્લોરોસિસ ઇઝ વાઇડ बहुत सारा सिम्टम्स હોય છે. એ સિમ્ટમ્સ આપણને એક તો જોવું પડે દોસ્ત કે એને જાણવા માટે જુદી રાસ્તા છે પાણી બદલાઈને જોવું પડે. ગેસ્ટ્રોઇન્ટેસ્ટિનલ સિમ્ટમ્સ હોય કોઈને ન્યુરોલોજીકલ સિમ્ટમ હોય કોઈને ખાલી જીચાન દુખાવાનું જોઈન્ટ પેઇન હોય એ જોઈને આપણને કરવું પડે છે તમે થોડું કેલ્શિયમ લો અને પાણી બદલી કાઢો તો કદાચ સારું થશે. તો રિવર્સલનું જે વાત થઈ છે આખીરમાં તો આપણને પહેલે કહી દીધું મેં એટલે કે શોર્ટ કરવામાં અને જે પાક સીધું થાય એ બી તમને બતાવે. હવે 4 ટાઈપનું જે કામ થયેલું વિકાસ દેસાઈ હેલો કોઈ ડિસ્ટર્બન્સ કોઈને મારો તો થાય શકે અને આપણે જે 4 સ્ટડી કરે છે હા 4 સ્ટડી કરી છે એ માટે પણ કીધું. જો वस्तु माने करो नॉट जस्ट में जो काम हम लोग ने शुरू किया आमा 3 हैबिट में નથી ગયા એ ડેન્ટલ ફ્લોરોસિસ હજી બી મોજૂદ છે. પછી આવ્યો જે કામ આપણને વિકાસ દેસાઈ પછી આશીષ શર્મા એ લોકોને ઇવન એસીટી ભુજ જે કામ કરે છે દરેક જગ્યામાં કેટલા સારા સુધી ડેન્ટલ ફ્લોરોસિસ છે એ પણ બતાવ્યું 70% જેવું છે. લાસ્ટથી આવ્યો આર્સેનિકોસિસ. આર્સેનિકોસિસ જે લોકોને ના જોવા હોય
એ લોકોને સમજાવવા ખાલી ફોટોગ્રાફ બતાવીને કરી શકે. એક વસ્તુ હું વેસ્ટ બેંગોલમાં જોયેલા છું, 4-5 ગામમાં ફરેલા છું, અને ત્યાં શું હોય એટલે તમે એટલા માટે બહુ આગળ નહીં બોલવું આ ટાઈમે, કારણ કે આ બાજુ આર્સેનિકોસિસ ઓછામાં ઓછા મળશે. આજે લાસ્ટ ફ્યુ મંથ્સ એગો ભુજમાં આર્સેનિક મ્યુનિસિપાલિટીમાં એ જાણવા આવ્યો, એના ઇમ્પેક્ટ ક્યારે થાય ત્યારે એની માટે તમે લોકોને તપાસ કરજો. એમાં પહેલી સાઇન હોય હાથની તળિયામાં કાલા કાલા સ્પોટ આવે તલને જેવું, આપણે જે કાલા છે એને જેવું આવે, અને પીઠમાં પણ થાય. અને જુદું એ લોકોની જે પાકની તળિયા હોય છે એ ફાટી જવા લાગે છે. એ લોકોને બોલે જે મેનેજ થાય, પણ ધીરે ધીરે બ્લડ આવવા શરૂ કરે ત્યારે એ લોકોને જુદા જુદા હોસ્પિટલમાં જાય છે. એને કહેવાય મેલાનોસિસ અને જુદા કહેવાય કેરાટોસિસ. હવે એ તો ટર્મિનોલોજી છે, પણ એને એકચ્યુઅલી પ્રી કેન્સરસ સ્કિન કેન્સરસ થિંગ્સ. અને આર્સેનિક ટેસ્ટ કરવા માટે પાણીમાં જેવી રીતે ટેસ્ટ કરે એ પાણી એવોઇડ કરવાનું. અને સ્કિન પ્રોબ્લેમ થોડા બી પૂછતા હોય, ડાર્ક સ્પોટ હોય, રફ સ્કિન હોય, તો ડોક્ટર પાસે જઈને તપાસ કરી લેવાનું મારો તરફથી વિનંતી છે. કેન્સર એનું અંદર શરૂઆતનું હોય, પાછી 6 મહિના 1 સાલ જેવું માણસની મેટાબોલિઝમ હોય છે એની ઉપર નિર્ભર કરે. લાસ્ટલી સિઝનલ વોટર બોર્ન ડિસીઝીસ એ બહુ ટેમ્પરરી છે, એટલે આપણે એની ઉપર જોર નથી દેતા. ડાયરિયા આવો તો 3 દિવસ મટી જાય છે, દવા લઈ લો ચાલી જશે, પણ એની એકચ્યુઅલી જે પાણીનું અંદર છે એ આપણે એવોઇડ કરીએ છીએ. જ્યારે કોલેરા થાય ત્યારે એકદમ મહામારી જેવું થઈ ગયું ત્યારે બહુ બધું લોકોને આપણે ટ્રાય કરીએ છીએ. જોન્ડિસ પણ એવો છે, ટાઇફોઇડ, ધીઝ આર ડિફરન્ટ વોટર બોર્ન ટેમ્પરરી ડિઝીઝ, બેક્ટેરિયોલોજીકલ થિંગ્સ. એવી રીતે ગેસ્ટ્રોઇન્ટેસ્ટિનલ પ્રોબ્લેમ પણ લોકોને થાય છે. જે સાધારણ રીતે એમિબાઇસિસ થાય એની પાણી એવોઇડ કરો, પર્ટિક્યુલરલી મોન્સૂન ટાઈમે એ કરવું જોઈએ. છેલ્લા સુધી વેક્ટર ડિસીઝ ને કોઈ કેવી રીતે છે એ છે. હવે એ બેઝ ફિલ્ડ બેઝિસ સર્વે હોય બેક્ટેરિયલ માટે, એની અંદર ડ્રિંકિંગ વોટર કન્ટેમિનેશન જોવા જોઈએ, અને મોસ્કિટો વાઇટ્સ ક્યાં છે એ વેક્ટર બોર્ન છે એ જોવા જોઈએ, અને ડાયરેક્ટ એક્સપોઝર સ્કિન પર જ્યાં સ્કેબિસ થાય કે પાણીનું અંદર આળસ બહુ આવીને લોકોને છે એ બધું જોવાનું. આપણને લઈ ગયા હતા તમે લોકોને બતાને વર્ચ્યુઅલ 3 કેસીસ 3-4 કેસીસ આપણને ફિલ્ડમાં બતાવ્યા કેવી રીતે તપાસ કરવાનું હોય છે. કદાચ એની અંદર કોઈ પણ કોકનો મને પૂછી શકો પર્ટિક્યુલરલી ફિલ્ડ. हेलो हाँ दादा, ફિલ્ડ ના ઉપર કોઈ પણ વસ્તુ કહી શકો, ડાયરેક્ટલી ફોન કરી શકો, આઉટ ઓફ કોલ પણ પૂછે. हेलो, बोलो। आपका वॉइस बहुत डिस्टर्ब आ रहा है. हेलो, यस प्लीज. हाँ आपका वॉइस बहुत डिस्टर्ब आ रहा नाउ है. आई थिंक काफी मिस हुआ आपके હવે बात. બરાબર છે. हाँ काफी डिस्टर्ब हुआ है वॉइस में, वो बीच बीच में बहुत कट हो रहा ओ माय गॉड. है. कोई बात नहीं, अभी लास्ट में ही आए ना आप, तो कोई बात नहीं. हाँ आप लास्ट में आके कंक्लूड कर दीजिए ना. ठीक है. ओके. हाँ आई गया वर्चुअल आई गया અને ઉપર હવે સાંભળ્યા છે. हाँ 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 कट होता है. कोशिश. हेलो. हाँ कंटिन्यू कर दीजिए दादा, कंटिन्यू कीजिए. अच्छा ठीक है. आर्ट्सिलो कोशिश ओके ना हो तो अच्छा आर्ट्सिलो कोशिश तक तो मैं बोला था. हाँ आप कंटिन्यू करके फिनिश कर दीजिए, कंटिन्यू करके फिनिश. અને फ्लोराइड तक ओके था. दादा आप कंटिन्यू कीजिए और फिनिश कर दीजिए. वॉइस का प्रॉब्लम है आज, हाँ कर देता. प्रॉब्लम है तो आप अच्छा कंटिन्यू. मैं एक्चुअली स्पीकिंग मैं अवे फ्रॉम द वाईफाई इसलिए हो सकता है. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप कंटिन्यू करके फिनिश कर दीजिए. थैंक यू. ठीक है. ओके ओके करता हूँ. ठीक है. अब एक मिस्टेक है
કદાચ શિક્ષક બધાને સાંભળાય છે ત્યાર પછી શીખવાડી છે આના અંદર નિશાન આવે અને એ પછી આપણને જોવા મળે જે કેમ થયો લોકોને इसको એવોઇડ કરે છે પણ ઓ માય ગોડ ફરીથી ગયા दादा इट्स ओके आई थिंक आप अभी कंक्लूड कर दीजिए क्योंकि आवाज बिल्कुल भी खराब आ रहा है तो हम लोग प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं ठीक है आगे जाओ हाँ आगे बढ़ते हैं मे बी वी कैन कम बैक ना लेटर आपका अगर इंटरनेट ठीक है तो ठीक है आई थिंक ये क्योंकि ये इंटरनेट का प्रॉब्लम्स किसी का भी हो सकता है और ये किसी के हाथ में नहीं है तो हम लोग जब दूर से ये ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और ये सब कर रहे हैं तो हमको इससे संभालना ही पड़ेगा थैंक यू वेरी मच दादा आई होप आप लोग को थोड़ा थोड़ा समझ में आया तो नहीं तो भी ना कि इसके मटेरियल सभी आपके पास हैं ना कि पिछले हफ्ते का रिपीट कर रहे थे थैंक यू तो आज के प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं तो जैसे कि मैंने आज कहा मेरा वॉइस क्लियर है क्या कोई कंफर्म कर सकते हैं हाँ जी क्लियर है हाँ सर क्लियर आ रहा है बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है बिल्कुल क्लियर आ रहा है कोई भी टाइम पे अगर क्लियर नहीं है तो मुझे बताइए मैं 2 कनेक्शन से मैंने ज्वाइन किया है हाँ सुन लो तुम्हारा क्लियर है क्लियर है ठीक है तो मेरा वाला आप बता दीजिए तो मैं दूसरे कनेक्शन में शिफ्ट कर लूंगा ओके थैंक यू तो ये हम लोग ये एक सेकंड क्या थैंक यू सेकंड किसी का भी વર્ચ્યુઅલ ટ્રીપ में जाइने फील्ड में तकलीफ થતું હોય તો મને પૂછવાનું વિનંતી છે ठीक है थैंक यू दादा बस थैंक यू हाँ तो आगे बढ़ते हैं दादा ठीक है हाँ हाँ ओके तो जो आगे जाओ ठीक है तो हम लोग अभी ऑलमोस्ट 2 महीने से ये वाटर क्वालिटी के जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है ये सेशंस है ये कर रहे हैं और इसमें हमने बेसिक कई सारे वाटर क्वालिटी के जो इश्यूज हैं बेसिक इश्यूज जैसे फ्लोराइड आर्सेनिक नाइट्रेट इसके बारे में समझा उसके हेल्थ इश्यूज के बारे में हमने समझा जो नए इश्यूज हैं जैसे कि यूरेनियम है मरकुरी है मैंगनीज है उसके बारे में भी थोड़ा थोड़ा हमने जानकारी यहाँ पर शेयर किया है और उसके बाद फील्ड टेस्टिंग कैसे किया जाए कोई पैरामीटर्स का फील्ड टेस्टिंग कैसे करना है हेल्थ का ये भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया है ना तो ये हमको लगा कि ये सबको जानना चाहिए अभी तक का जो हमने 1-2 महीने तक किया है ये हम सबको जानना चाहिए कोई भी एनजीओ में काम करते हैं ये अभी तक हमने जो शेयर किया है ये हम सबको जानना चाहिए और हम लोग ये विनती करते हैं आपको कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपके एनजीओ में आप जिस गांव में काम करते हैं वहां पर ये सारा इंफॉर्मेशन भी लेकर जाए उसके लिए हमने ये जो कोशिश की है कि हमने आपके साथ गुजराती में कंटेंट शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं तो जो भी ये सेशन हो रहा है वो इस लिंक में आप जाएंगे ये यूट्यूब का लिंक है ये लिंक प्रवाह के लिए हमने बनाया है प्रवाह नेटवर्क के लिए हमने बनाया है वाटर क्वालिटी के लिए तो यहाँ पर जो भी सेशन हो रहे हैं वो आपको सेशन का वीडियो पूरा मिल जाएगा वो एक बात है दूसरी बात ये है कि जो पावर पॉइंट यहाँ पर हम लोग इंग्लिश में दे रहे हैं वही पावर पॉइंट आपको गुजराती में ऑडियो में भी आपको मिल जाएगा आप में से बहुत लोग उसको देख रहे हैं और हमको फीडबैक भी आया वो जो गुजराती में हम लोग समरी देते हैं 5 मिनट का 10 मिनट का उसमें अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमको लिखिए और इसमें हम लोग कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं हमको बताइए ये आप और भी गुजराती जो ऑडियंस है कम्युनिटी में लेके जा सकते हैं आपके और एनजीओ के साथी तक लेके जा सकते हैं जिसको भी गुजराती में वाटर क्वालिटी के बेसिक चीज़ें समझना है जैसे आप इधर देखेंगे तो वाटर टेस्टिंग फील्ड टेस्टिंग वाटर क्वालिटी एंड हेल्थ ये सभी चीज़ यहाँ पर आपको मिल जाएगा तो एक तो यहाँ पर ये रिसोर्स हमने आपके साथ शेयर किया है अगर आपने अभी तक देखा नहीं है तो ये लिंक भी आपको भेजेंगे जो ये लिंक मैं यहाँ पर अभी तो इस चैट में भेज रहा हूँ मगर ये लिंक आपको ग्रुप में भी हम लोग भेजेंगे ताकि आपके पास ये हमेशा रेडी अवेलेबल हो ना मैंने चैट में भेजा है मगर ग्रुप में भी आपको ये लिंक भेजूंगा इस लिंक में आप जाएंगे
तो आपको सारा इस कोर्स का वीडियो मिल जाएगा। ये एक हो गया। दूसरा चीज जो अगर आपको अभी दिख रहा है, तो हम लोग वाटर क्वालिटी नेटवर्क आपको इंट्रोड्यूस किए थे ना लास्ट टाइम भी, पिछले बार भी हमने आपको वाटर क्वालिटी नेटवर्क का एक इंट्रोडक्शन दिया था। तो इस वाटर क्वालिटी नेटवर्क में आप अगर जाते हैं तो आपको और भी बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलेंगी ना वाटर क्वालिटी नेटवर्क के अंदर से। तो ये वाटर क्वालिटी नेटवर्क के अंदर से आप अगर ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे तो ऑर्गेनाइजेशन में जाने के बाद आपको आपके खुद के ऑर्गेनाइजेशंस भी दिखेंगे, है ना। यहाँ पर अगर ACT के लोग हैं, AKRSP के हैं, CE के हैं, तो प्रवाह की तरफ से यहाँ पर बेसिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया गया है। तो आप इस वाटर क्वालिटी नेटवर्क के अंदर आप खुद अपना मेंबरशिप अभी बना सकते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन के साथ लिंक करते हुए, है ना। तो ये सभी ऑर्गेनाइजेशंस जो यहाँ पर इस प्रवाह नेटवर्क में है, तो प्रवाह नेटवर्क के लिए स्पेसिफिकली हमने ये ऑर्गेनाइजेशंस का यहाँ पर प्रेजेंस बनाया है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लोगों के लिए भी, मतलब इंडिविजुअल जो व्यक्तिगत हैं, आप लोग सभी हैं, लोगों के लिए भी यहाँ पर एक स्पेस है। तो आपको अगर ग्राउंड से स्टोरी कंट्रीब्यूट करना है, अगर आपको वाटर क्वालिटी के स्पेस में खुद को डेवलप करना है, तो आप ये भी आकर हम अपना प्रोफाइल बना सकते हैं, लॉगिन बना सकते हैं। और लॉगिन करने के बाद आप अपना ईमेल एड्रेस और लॉगिन होकर आप खुद भी इस कोर्स कंटेंट को एक्सेस कर सकते हैं इस प्लेटफॉर्म पे। और इसमें आगे जाकर आप स्टोरीज कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। जैसे हमने लास्ट टाइम आपको दिखाया कि यहाँ पर ग्राउंड के अंदर से आपको कई स्टोरीज, जैसे कि आप कोई वाटर टेस्टिंग करते हैं उसका स्टोरी दे सकते हैं, अगर आप कोई एक्टिविटी करते हैं, सिखाते हैं किसी को, उसका स्टोरी दे सकते हैं, अगर आप कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं, अगर ग्राउंड में आपको कोई प्रॉब्लम दिखाई देता है, अगर कोई अच्छा वाटर हार्वेस्टिंग का किसने सॉल्यूशन किया, आज मेरा भी इंटरनेट का प्रॉब्लम है, तो वॉइस अगर मेरा क्लियर हो रहा है तो ठीक है। मेरे स्क्रीन शेयर में आपको आई थिंक दिख नहीं रहा होगा अभी तक, क्योंकि मेरा भी लोडिंग हो रहा है। तो अगर मेरा वॉइस क्लियर है तो वहाँ तक ठीक है। जैसे यहाँ पर अभी आप लोड हुआ है, जैसे ये जो स्टोरीज हैं, तो इस तरीके का डिफरेंट स्टोरीज भी आप खुद भी शेयर कर सकते हैं, है ना। अलग अलग फॉर्मेट्स में वीडियो स्टोरीज भी शेयर कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर जैसे कि जो दादा ने अभी बताया कि सिंपल टेस्ट होता है फ्लोरोसिस के लिए, ये 3 एक्सरसाइज का टेस्ट होता है। तो अगर आप इस पर्टिकुलर वीडियो स्टोरी में जाएंगे तो छोटे बच्चे लोग, स्कूल के बच्चे लोग ये एक्सरसाइज कर रहे हैं और स्कूल के टीचर उनको सिखा रहे हैं। तो ये 3 स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर स्केलेटल फ्लोरोसिस, है ना। तो इस तरीके का ट्रेनिंग वीडियो आपको मिलेगा। तो ये अलग अलग तरीके की चीज काम आता है, उसके लिए ये प्लेटफॉर्म है। और प्लेटफॉर्म इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये हम सबके लिए है। ऐसा नहीं कि कोई सामने से आपको बताएंगे, आप खुद भी दूसरों को दिखा सकते हैं कि आपके यहाँ सीख रहे हैं, और हम लोग सब हैं आपको हेल्प आउट करने के लिए। तो हम लोग इसीलिए अभी इसके आगे ओपन है कि कोर्स में जो भी लोग यहाँ पर मेंबर हैं वो सब इस प्लेटफॉर्म पे आकर, जैसे आप देख सकते हैं, आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, है ना। अभी आप यहाँ पे जाकर आप स्टोरीज लिखेंगे तो स्टोरीज में आप गुजराती स्टोरी भी लिख सकते हैं, है ना। कि ऐसा नहीं कि सिर्फ एक इंग्लिश की, हिंदी की, यहाँ पर जो लैंग्वेजेस हैं सिर्फ वही नहीं, मगर जैसे आप स्टोरी लिखेंगे तो आप अगर हिंदी में स्टोरी लिखना चाहते हैं तो हिंदी में स्टोरी लिख सकते हैं। और अगर आपका लोकेशन, जैसा मैं अभी आनंद में हूँ, नहीं तो अगर मैं राजकोट में हूँ तो राजकोट से भी स्टोरी लिख सकते हैं। कोई भी आपका जो जगह है ना, उस जगह से आप यहाँ पर स्टोरीज कंट्रीब्यूट करना शुरू कर सकते हैं। और इसके आगे आप देखेंगे तो स्टोरीज के बहुत सारे टेम्पलेट्स बने हुए हैं यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर देखेंगे स्टोरी कोई पर्सन के बारे में हो सकता है, मतलब किसी के बारे में लिखना है आपको, कोई जगह के बारे में, कोई गांव के बारे में हो सकता है। स्टोरी आपका कोई एक्टिविटी के बारे में हो सकता है कि गांव में आप लोगों को जोड़ रहे हैं, PRA कर रहे हैं वाटर क्वालिटी पे, कि गांव में आप लोगों को कुछ सिखा रहे हैं, इसके बारे में हो सकता है। कोई भी और भी, तो हर एक आप जो यहाँ पर देखेंगे उसका टेम्पलेट बना हुआ है, स्टोरी टेम्पलेट, है ना, नीचे जनरेट माय टेम्पलेट। और ये आप अगर हिंदी में लिखेंगे तो आपको ये हिंदी में दिखेगा सारा चीज। सॉरी, किसी को कुछ बात करना है, प्लीज बात कर सकते हैं। किसी को कुछ कहना था? ठीक है, अगर ये डिस्टर्बेंस है तो प्लीज आप
थैंक यू। अगर डिस्टरबेंस है तो आप प्लीज म्यूट कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच। किसी ने अगर कुछ लिखा है? नहीं, ओके थैंक यू। तो मैं ये कह रहा हूँ कि वाटर क्वालिटी नेटवर्क में आप जाकर इस तरीके का स्टोरी लिख सकते हैं। आपके लिए स्टोरी का टेम्पलेट दिया हुआ है। जैसे अगर हिंदी है तो उसी तरह गुजराती में भी हम लोग अभी लिखकर आपको टेम्पलेट दे रहे हैं। तो जैसे कहानी की टाइटल, कहानी की सब टाइटल, आप जो एक्टिविटी कर रहे हैं उस एक्टिविटी के बारे में कौन क्या पढ़ना चाहिए, इसके बारे में, गतिविधि के बारे में लिखिए एक थोड़ा सा समरी। बाद में इस गतिविधि और आपकी कहानी के बेहतर ढंग से समझने के लिए क्या जानकारी लिखना है, और आपकी कहानी अलग अलग चरणों में इधर लिखी। यही चीज हम लोग गुजराती में भी आपको अवेलेबल करने वाले हैं वाटर क्वालिटी नेटवर्क में। अगले हफ्ते से अवेलेबल होगा, मगर गुजराती में आप लिख तो सकते हैं। ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है वो हिंदी में है, मगर गुजराती में आप लिख तो सकते हैं। एंड यहाँ पे अगर आप लिखेंगे, जैसे कि अगर मैं लिखता हूँ प्रवाह, है ना, तो प्रवाह ऑर्गेनाइजेशन भी यहाँ पर आ जाएगा। तो आप अगर प्रवाह नेटवर्क की तरफ से आप स्टोरी कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, नहीं तो अगर कोई संस्था है यहाँ पर, जैसे कि मानो कि AKRSP है, कि CSPC है ना, कोई भी संस्थाएं हैं यहाँ पर, तो उस संस्था की तरफ से भी आप अपने स्टोरी को, जैसे कि आपके ग्राउंड के केस स्टडीज हैं, स्टोरीज हैं, तो वाटर क्वालिटी के ऊपर आप यहाँ पर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो आपके साथ टैग हो जाएगा, है ना, कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के साथ ये स्टोरी आ जाएगा और ये एक्टिविटी की स्टोरी है, इसी तरह जैसे CSPC है। तो ये सभी संस्थाओं के साथ आप एक स्टोरी को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और ये हिंदी में नहीं, बाकी लैंग्वेजेस में भी, जैसे यहाँ पर दिया गया है इंग्लिश है, बाकी लैंग्वेजेस में भी आप स्टोरीज को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, है ना। तो ये स्टोरीज सिर्फ लिखने वाले स्टोरीज से नहीं, मगर आप वीडियो स्टोरीज भी दे सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर बहुत सारे ग्राउंड से वीडियो स्टोरीज दिया है। जैसे मैं अगेन यहाँ पर लिखता हूँ हिंदी, मैं यहाँ पर अगेन फिर से राजकोट टाइप करता हूँ। मुझे देखना है कि ये आइडेंटिफाई कर रहा है क्या राजकोट का नाम। मेरा शायद इंटरनेट भी आज स्लो है, तो इसलिए इसको समय लग रहा है पकड़ने के लिए। तो आप जो भी लोकेशन में है उस लोकेशन से ये स्टोरी आप यहाँ पर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और जिस तरीके से मैंने अभी कहा कि वीडियो स्टोरी, तो आप अपने वीडियोस को यूट्यूब में डाल सकते हैं और उसके बाद यहाँ पर एक स्टोरी लिख सकते हैं, है ना, एक शॉर्ट समरी, है ना। तो जैसे कि ग्राउंड में आपको अगर कोई वाटर टेस्टिंग की कोई प्रॉब्लम दिखता है ना, वाटर क्वालिटी के ऊपर कोई खराब पानी है जो आपके गांव के ऊपर है, गांव में आता है, तो उसका वीडियो लीजिए, उसके बारे में बात कीजिए और यहाँ पर ये वीडियो लिंक यहाँ पर बताइए, है ना। उसके बाद यहाँ पर शॉर्ट समरी लिखिए और कम्युनिटी टैग अगेन, जैसे कि यहाँ पर अगर कोई भी संस्था का नाम बताइए जो यहाँ पर है, कोई भी आपके संस्था का नाम बताइए। तो मैं यहाँ पे ट्राई करता हूँ कि आपका संस्था यहाँ पर आ रहा है क्या। यहाँ पर कोई भी अपना माइक ऑन करके, जैसे कि सेवा है, SSKK, ओके, I'll try ना। तो सेवा मुझे लगता है कि यहाँ पर आइडेंटिफाई नहीं हुआ है, हम लोग उसको जरूर लेकर आएंगे, शायद हुआ भी है, मे बी आई एम नॉट टाइपिंग इट प्रॉपर्ली। तो SSKK टाइप करता हूँ मैं, SSKK, मे बी शिक्षा एवं उस तरीके का भी हो सकता है, शिक्षा एवं, मैं एक बार चेक करता हूँ यहाँ पर, शिक्षण और समाज कल्याण केंद्र अमरेली, शिक्षा एवं ना समाज सेवा केंद्र ना, यहाँ पर चेक करता हूँ मैं कि जिस तरीके से, तो यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ पर वेबसाइट में ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया गया है, उसी तरीके से हमको लिखना पड़ेगा। जैसे कि मैंने पहले अगर ACT का लिखते हैं तो ACT का यहाँ पर आ जाएगा, है ना, नाम, जैसे कि ACT दिख रहा है। नहीं तो अगर यहाँ पर कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस अगर आप जाएंगे तो जैसे कि सेवा का नाम, शायद हमको इंफॉर्मेशन, किसी का प्रेजेंटेशन दिखाई सेवा नहीं का देता नाम है। हमने गलत लिखा है शायद, और कि मैंने गलत लिखा, ACVA अगर लिखते हैं तो आता है, जबकि SCWA होना चाहिए। तो जैसे सेवा अगर लिखते हैं कि जन विकास सेवा मंडल, और SCWA होना चाहिए, यहाँ पर गलती है। तो बेसिकली आपकी जो संस्था का जो आपकी संस्था का जो नाम है उसको आप लिखेंगे तो उसके साथ आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं यहाँ पर, और आपके नाम से भी, यानी कि आप यहाँ पर मेंबर बनते हैं तो आपके नाम से भी आप शिक्षण नहीं, तो ये स्पेलिंग मिस्टेक सब यहाँ पर हम लोग करेक्ट कर सकते हैं, है ना। तो ये सब पॉसिबल है। सुंदर CSPC जरा मेंशन कीजिए। CSPC अगर करते हैं तो आपको CSPC यहाँ पर आ जाएगा, जैसे CSPC है। तो जो भी आपकी संस्थाएं है ना, तो वो सभी जो वाटर क्वालिटी की संस्थाएं, हम लोग ये चाह रहे हैं कि जैसे कोई डायरेक्टरी है, येलो पेजेस है, जैसे कि एक सिंगल जगह है जहाँ पर जाकर आप सब कुछ देख सकते हैं। तो वाटर क्वालिटी में आप सभी संस्थाएं काम कर रहे हैं, तो आप सभी अपना जानकारी यहाँ पर से स्टोरीज दे सकते हैं, वीडियो हो, केस स्टडीज हो,
आप हमको कॉन्टेक्ट कीजिए, तो जो आपके जो केस स्टडीज हैं यहाँ पर लाकर वाइड तरीके से आप ट्रेनिंग में यूज कर सकते हैं। हम लोग तो इसको ये जो वीडियोस हैं उसको सिर्फ ट्रेनिंग की केस स्टडी रिकॉर्डिंग ही नहीं, मगर गवर्नमेंट लिंकेजेस के लिए भी यूज कर रहे हैं। जैसे भी आपको अगर दिखाता हूँ अभी, इसी वेबसाइट के अंदर से जो बनाया गया है सुनो बोलो ना, यानी कि जो वीडियो स्टोरीज हैं यहाँ पर, वो वीडियो स्टोरीज को इकट्ठा करके एक एक लोकेशन में वो गवर्नमेंट की बाकी डिपार्टमेंट के साथ ये दिया जाता है ताकि वो एक्शन ले सकते हैं, है ना। तो आपको जिस तरीके से भी इसको अभी एक्सेस नहीं हो रहा है ये लिंक, मगर यहाँ पर जो वीडियो स्टोरीज हैं वो वीडियो स्टोरीज के अंदर से आप ये सुनो बोलो को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर नॉलेज में जाएंगे, स्टोरीज में जाएंगे, अगर आप टाइप ऑफ स्टोरी वीडियो स्टोरी में क्लिक करेंगे तो आपको ग्राउंड के बहुत सारे ऐसे स्टोरी मिलेंगे। जैसे ये 2 लड़के हैं, वो अपने गांव में बता रहे हैं कि वो जैसे कि उनके गांव में कितना प्रॉब्लम है और उनको कोई सोल्यूशन चाहिए, सरकार से कुछ सोल्यूशन नहीं मिला है, तो ये 2 बच्चे ये स्टोरी बता रहे हैं। तो आप मैं क्लिक करता हूँ, मुझे पता नहीं कि ये दिखेगा क्या, मगर आप प्लीज Some are not able to see the presentation. वीडियो स्ट्रीम हो रहा है कि जनरली वीडियो के अंदर तो देख सकते हैं, है ना। तो ये आपके लिए फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि हम सब एक प्लेटफॉर्म पे आए और हम सब एक प्लेटफॉर्म पर काम करें, है ना। ये वीडियो दिखा क्या आपको ये वीडियो दिखाई दिया? सभी लोग कंफर्म कर सकते हैं क्या? वीडियो दिखाई दिया, सुनाई दिया आपको? यस यस। Some are हाँ, not तो able to ये see. आप खुद भी जाकर देख सकते हैं। थोड़ा गुजराती जैसे ही लगेगा, मगर ये गुजराती मतलब ये थोड़ा ज्यादा भीली भाषा है, जो आदिवासी क्षेत्र में ज्यादा बात करते हैं। ये ज्यादा भीली भाषा है, मगर गुजराती जैसे ही लगेगा। तो लड़का बोल रहा है कि पैर टेढ़ा हो गया, वाका हो गया है ना, कि उसको पता नहीं क्या हो गया ये पैर में, हमको पता है कि क्या है पानी का प्रॉब्लम। तो वो अपना तकलीफ बता रहा है और ये हम लोग सरकार के पास लेके जाते हैं लोकल, तो वो इसका देख सकते हैं डायरेक्टली, है ना, कि ग्राउंड में क्या प्रॉब्लम है, ग्राउंड की स्थिति क्या है ना। डेटा में तो सब कुछ सही सही आता है, मगर जमीन में स्थिति क्या है ना, सिचुएशन क्या है। तो ये वेबसाइट, इस प्लेटफॉर्म के अंदर से आप ग्राउंड के सिचुएशन को बाहर ला सकते हैं। क्योंकि हम लोग ये चाहते हैं कि सिर्फ यही पावर पॉइंट, यही चीज बताते जाएंगे, इसका कोई अंत नहीं है। ग्राउंड से हम जो एनजीओ है वो सही स्थिति बाहर आए, लेकर आए और सोल्यूशन लेकर आए। हम लोग लेकर आए, सीएसआर लेकर आए, सरकार लेकर आए, लोग खुद करें, समुदाय खुद अपना हल ढूंढे। ये इस उद्देश्य है वाटर क्वालिटी नेटवर्क प्लेटफॉर्म का। तो उसमें हम लोग ये जानते हैं कि आप लोग अलग अलग चीज सीखना चाहते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि हर एक पर्सन एक ही एक ही टॉपिक पे और जानना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पर वेबसाइट में आप देखेंगे तो कई लोग फ्लोराइड इश्यू पे जानना चाहते हैं, कई लोग जल जीवन मिशन पे अधिक जानना चाहते हैं। तो हम लोग अभी आगे से ये कोशिश कर रहे हैं कि इस कोर्स को पर्सनल बनाए, यानी कि पर्सनल मतलब व्यक्तिगत लेवल पे। अभी जैसे यहाँ पर अर्शी भाई है ना, अर्शी भाई आपको अगर सुनाई दे रहा है तो क्या आप नमस्ते ना। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी तक आपने जो कोर्स में सीखा है ना, आपको कौन से टॉपिक में और जानने की इच्छा हो रही है ना, आपको क्या चीजें और लगता है कि आपको और जानना है इस कोर्स के अंदर से, कौन से टॉपिक के बारे में? मुझे थोड़ा आर्सेनिक के बारे में ज्यादा जानना है, गुजरात में आर्सेनिक का स्टेटस। वेरी गुड अर्शी भाई। देखिए आपने जो अभी कहा ना, ये चीज हमको बहुत हेल्प कर रहा है कि अगर एक अर्शी भाई है जो आर्सेनिक के बारे में जानना चाहते हैं, तो हम लोग आपको मदद करेंगे आर्सेनिक के बारे में जानने के लिए, है ना। उसी तरह सेवा से अगर भारती, पिछली बार आपने भी कहा अगर भारती बहन है, नहीं तो और भी कोई सेवा से, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपके अंदर से, नहीं तो सुरेंद्र नगर से जो बहन है जो लास्ट टाइम भी कहा था जिनको और जानने की इच्छा है, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा है ना, सुरेंद्र नगर से ज्वाइन किया था। तो सेवा से अगर ज्वाइन किया है अगर किसी ने, तो आप बात कर सकते हैं। शायद इस बार लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है क्या, कि चेक करता हूँ मैं भी। सेवा से कोई बहन है जो
बात कर सकते हैं, क्योंकि पिछली बार आपने काफ़ी क्लियरली कहा था, है ना, कई चीज़ें जो आपको कोई बात नहीं, अगर कोई ज्वाइन नहीं किया है कि अगर सुनाई नहीं दे रहा, नहीं तो और भी कोई पर्सन में अगर पूछूं, कमलेश भाई अगर मैं आपको पूछूं कि अभी तक जो कोर्स में अलग अलग चीजें हुए हैं, आपको क्या लगता है कि क्या पर्टिकुलर चीज में आपको फोकस और करना है ना, कौन सा चीज में आगे लेके जाना है? हाँ, हाँ कमलेश भाई, आपको सुनाई दे रहा है? ये तो और भी कोई भी पर्सन है ना जो कॉल में। हाँ कमलेश भाई, प्लीज प्लीज, मैं पूछ रहा हूँ कि जैसे कि अभी तक 1.5 महीना 2 महीने के सेशंस हुए, तो हम लोग ये जानना चाहते हैं कि कौन से चीज में आपको ज्यादा रुचि है, जिसमें और डीप में आपको जाना है ना, जिसमें हम ज्यादा फोकस करें, ऐसे कोई सब्जेक्ट, कोई टॉपिक आप शेयर कर सकते हैं? मुझे मतलब एक जो स्पेसिफिक अगर बात करूं तो कोस्टल एरिया में, खास करके भावनगर, अमरेली और कच्छ में ये जो लेड होता है ना, तो वो है क्या पानी के अंदर? ओके, लेड का कंटामिनेशन, और दूसरा उससे हेल्थ के ऊपर क्या इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आता है? ओके 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 ओके, ठीक है, थैंक यू। तो सॉरी, मेरी तरफ से थोड़ा डिस्टरबेंस होगा यहाँ पे, वॉइस में भी चला जाएगा। वैसे सुरेंद्र नगर से उषाबेन है, तो वो बात करना चाहते हैं, शायद वो सुन नहीं रही है कि पता नहीं। कोई बात नहीं, आप भी बात कर सकते हैं उनकी तरफ से, अगर कोई पर्टिकुलर चीज आपको रखना है कि वाला जो प्रॉब्लम था वो, और हमारे 9 डिस्ट्रिक्ट में हम लोग काम करते हैं, टाटा, पाटन, सुरेंद्रनगर, कच्छ। હેલો ભારતીબેન, અમે આ ફિલ્ડમાં આમ જાય છે ને, વાહનમાં બેઠા છે, બહુ હમરાતું નથી. हाँ फहमीदा बेन, ओके, બરાબર. નૈના બેન બી મીટિંગમાં જોઈન થયેલા છે. કઈ વાંધો નહીં. હા, હારું હો ભારતીબેન, કેમ છો? મજામાં ને? હા, મીટિંગ ચાલે છે એટલે પછી હા, તમે તાલીમમાં ભાગ લેજો, જેટલું સંભળાય એટલું સાંભળો ચોક્કસ. એટલે सुंदरભાई, हमारा सभी जिलों में जो इश्यू आते हैं रिलेटेड टू वाटर के क्वालिटी के, उसमें हम काम करना चाहेंगे। ओके, थैंक यू भारती बहन। तो यही हमारा उद्देश्य है आज का, कि हम लोग थोड़ा पर्सनल लेवल में अभी हर एक पर्सन पे, मतलब कि यहाँ पर जो इस प्रोग्राम में है, हम लोग ये चाहते हैं कि सुंदर, हाँ यस छगन भाई प्लीज। मुझे भी, मैं यहाँ मीठापुर द्वारका में काम कर रहा हूँ, सीएसपीसी में हूँ, तो मुझे ये थोड़ा लगता है कि हम ये स्टोन के बारे में थोड़ी बात और गहराई से करें। वेरी गुड, यस, क्योंकि ये एक इश्यू ऐसा है कि जो पानी के साथ सीधा जुड़ा हुआ है। करेक्ट, बिल्कुल। तो इसीलिए अभी हम लोग क्या करेंगे, हेलो, कोई बात करना चाहते हैं? हाँ भारती बहन, नमस्ते। नमस्ते मैं सुरेंद्रनगर जिले से बोल रही हूँ, मुमताज बोल रही हूँ। भारती बहन से मैं भारती बहन को बता रही हूँ कि मैं भी फील्ड में हूँ, मैं इसमें जुड़ी होंगी मीटिंग में। ठीक है, तो आप बता सकते, सुंदर भाई हमें तालीम दे रहे हैं ना, तो सुंदर भाई के नाम से बताओ कि वो पूछ रहे हैं आपको कि किस प्रकार की तालीम की जरूरत है। जो पिछली ट्रेनिंग में आपने हिस्सा लिया हो तो आपको याद होगा। तो जो पानी की गुणवत्ता है ना, तो हमारे इलाके में ज्यादा पथरी की समस्या है, तो क्या उसी विषय पर आप काम करना चाहोगे, ये पूछ रहे हैं। सुंदर भाई आप बोल सकते हैं। सुंदर भाई, यहाँ है ना, तो पानी ये पाटड़ी तालुके में जो रण है ना, बहुत नजदीक है, और यहाँ का पानी खारा होता है, इसलिए नहीं तो पथरी की रोग बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है मुमताज बहन, बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग फील्ड में होके वहां से ज्वाइन कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है और हम सबको बहुत अच्छा लग रहा है। तो आगे आप कंटिन्यू कर सकते हैं ये सुनते हुए। तो मैं शुभश्री को यहाँ पर रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये हमने एक छोटा प्रेजेंटेशन बनाया, इसके बैकग्राउंड में ही मैं बात कर रहा था कि हम लोग ये चाह रहे हैं कि अभी हम लोग व्यक्तिगत लेवल पे, पर्सनल लेवल पे इस प्रोग्राम को लेके जाएं आगे के टाइम पे, ताकि आपकी संस्था
और संस्था के आगे भी व्यक्तिगत लेवल पर हम लोग वाटर क्वालिटी के ऊपर लर्निंग करें। और ये तभी होगा कि हम पहले समझेंगे कि हमको सीखना क्या है ना, व्यक्तिगत लेवल में। ये हम आपको 3 महीने पहले नहीं पूछ सकते थे, क्योंकि 3 महीने पहले एक बेसिक चीज आपको हमने बताया नहीं, है ना। तो पिछले 2 महीने में हमने जो बेसिक चीजें आपको शेयर की हैं, जो वाटर क्वालिटी गुणवत्ता में क्या क्या टॉपिक्स हैं, क्या क्या बेसिक चीजें हैं, टेस्टिंग क्या होता है, अभी सभी लोग हम लोग अभी एक स्तर पे हैं। तो इसके बाद हम लोग पर्सनल लेवल पे जाएंगे और डीप में जाएंगे, एक्सपर्टीज लेवल में जाएंगे। तो शुभश्री आप अभी सुनाई दे रहा है आपको शुभश्री? तो आप बात कर सकते हैं इसके ऊपर। ठीक है, मेरी आवाज आ रही है? यस, आ रही है मुझे तो। ओके, थैंक यू। सभी को नमस्कार। जैसे सुंदर जी अभी बता रहे थे कि अभी हम आप लोगों को एक पानी की गुणवत्ता के ऊपर एक साधारण एक जानकारी दिए हैं कि किस किस तरह की पानी की गुणवत्ता की समस्याएं हैं। तो आगे अभी इसी प्रवाह कोर्स में हम आगे जब हम बढ़ना चाह रहे हैं, तो हम ये जानना चाहते हैं कि आप लोग जो सभी काम कर रहे हैं, अपनी संस्था में काम कर रहे हैं या आपके व्यक्तिगत लेवल में, आप किन चीजों पे ज्यादा जानने की अपनी उत्सुकता रखते हैं? कौन सी चीज पे, कौन सा सब्जेक्ट है जिसके बारे में जानने से आपको फायदा होगा? यही हमने आज का टॉपिक रखा है कि वाटर क्वालिटी पर्सनल लर्निंग प्लान। तो खुद की क्षमता वर्धन के लिए हम ये चीज ला रहे हैं कि आप किस तरीके से खुद की अपनी जो समझ है विषयों के बारे में, जो पानी की गुणवत्ता के जो अलग अलग विषय हैं, जैसे फ्लोराइड है, सैलिनिटी है या किडनी स्टोन्स हैं, इतनी सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, आर्सेनिक है, तो उसके बारे में और एडवांस लेवल पे और भी आगे आपकी जो समझ है वो हम किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। तो जैसे कि आप अपना विषय खुद चूज कर सकते हैं कि आप कौन से विषय में जानना चाहते हैं। और ये इस तरीके से भी हो सकता है क्योंकि जैसे हम संस्था में काम करते हैं, तो हमारी संस्था शायद एजुकेशन पे काम करती है, शायद एग्रीकल्चर पे काम करती है, शायद हमारी संस्था काम कर रही है। हमारे जो संस्था है उसके फोकस के थ्रू भी हम अपना जो लर्निंग इंटरेस्ट है, हम किस सब्जेक्ट के ऊपर जानकारी रखना चाहते हैं और हम आगे खुद का व्यक्तिगत लेवल पे भी हम किस तरीके से और विषयों पे जानकारी रख सकते हैं, ये चीज हम आज आपके सामने लेके आए। तो जैसे कि लास्ट हमारा जो कॉल हुआ था उसमें बहुत सारे पॉइंट्स निकले थे। जैसे अभी भी जैसे कई लोगों ने कहा किसी को आर्सेनिक के बारे में जानने की इच्छा है, किसी को लेड के बारे में जानने की इच्छा है, किसी को सैलिनिटी या किडनी स्टोन्स के बारे में जानने की इच्छा है, क्योंकि उनके जो लोकेशंस हैं, काम करने के लोकेशंस हैं, वहाँ पे वो इश्यूज हैं। तो हम लोग अभी इश्यू स्पेसिफिक हम लोग अपने कोर्स को भी डिजाइन कर सकते हैं कि हम कौन कौन से विषय के बारे में आगे को इस प्रवाह कोर्स में जानना चाहेंगे। नेक्स्ट स्लाइड सुंदर जी। नेक्स्ट तो जैसे हमारा एक टॉपिक आया था, नेक्स्ट स्लाइड, कि एक भारती बहन ने हमसे कहा था कि अभी जल जीवन मिशन पे काफी सारे लोग काम कर रहे हैं, काफी सारे एनजीओज जो सपोर्ट कर रही है ये जल जीवन मिशन में काम के लिए। तो उन कई लोग ऐसे हैं जिन्हें जल जीवन मिशन के ऊपर विलेज एक्शन प्लान के ऊपर काम करना है। तो ये जल जीवन मिशन है जो सरकार की तरफ से एक मिशन ये हुआ है, लागू हुआ है, जिसमें हर घर एक नल योजना का एक प्लान हुआ है। और इसमें शुरुआत लेवल पे जब ये शुरुआत है तो वहाँ पे एक विलेज एक्शन प्लान डेवलप किया जा रहा है। ये विलेज एक्शन प्लान वहाँ पे बनाए जा रहे हैं जहाँ पे पानी की समस्या है, गुणवत्ता की समस्या है। अगर आपके गांव में सैलिनिटी की समस्या है तो उसके रिलेटेड एक विलेज एक्शन प्लान बनेगा। अगर आपके गांव में
आर्सेनिक के कोई और फ्लोराइड इश्यूज हैं तो उसके रिलेटेड एक विलेज एक्शन प्लान्स बनेंगे। नेक्स्ट स्क्रीन। तो हम अभी आपके सामने 3 ऐसे टॉपिक्स रखेंगे, कोर्स के टॉपिक्स, जैसे एक है जल जीवन मिशन। तो इस जल जीवन मिशन में हम आपको क्या क्या बता सकते हैं, इस कोर्स में क्या क्या हम आपको जानकारी दे सकते हैं, जैसे कि जल जीवन मिशन और एक पानी वाटर क्वालिटी के ऊपर एक ओरिएंटेशन कि है क्या ये एक्चुअल में, ये जल जीवन मिशन और पानी की चीज वाटर क्वालिटी क्या है, इसका एक ओरिएंटेशन रहेगा। दूसरा है कि जैसे मैंने आपसे कहा कि जल जीवन मिशन को करने के लिए, एक मिशन को उपलब्ध करने के लिए गांव लेवल पे एक विलेज एक्शन प्लान बनाया जा रहा है। तो एक फॉर्मेट सरकार की तरफ से ही आई हुई है, जिसको PHET डिपार्टमेंट या RWSS डिपार्टमेंट उसको भर रही है। तो NGOs भी उसमें सहयोग कर सकती है, मदद कर सकती है अपने गांव में ये विलेज एक्शन प्लान बनाने में। रोल ऑफ डिस्ट्रिक्ट वाटर सैनिटेशन मिशन। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि ये जो डिस्ट्रिक्ट वाटर सैनिटेशन मिशन है ये जिला पंचायत के अंडर में आता है, और जो कि वीडियो स्टॉप संचालू जो मेरे को मन नहीं करो करे वीडियो चाहिए है आप लोग साइड पर नहीं तो तुम बियर स्क्रीन अपना म्यूट कर दीजिए, बात कर। हाँ ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं कि ये DWSM जो है, डिस्ट्रिक्ट वाटर सैनिटेशन मिशन जो है, ये मॉनिटर करती है और जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इसको देखती है। तो इनका भी एक रोल है, ये जल जीवन मिशन में DWSM का भी एक रोल है, तो उसके बारे में आपको जानकारी देंगे, क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट जो है, हर एक जो लोग हैं, जो गवर्नमेंट बॉडीज हैं, तो उनका भी एक एक रोल है, तो उसके बारे में हमारी जानकारी होनी बहुत जरूरी है। दूसरा है कि VWSC विलेज वाटर सैनिटेशन कमेटी, जो कि ग्राम पंचायत लेवल पे इसका ये होता है, संचालन होता है। तो इनका भी एक रोल है कि ये VWSC किस तरीके से मॉनिटर करे कि इस वाटर सप्लाई को या फिर इस पानी की गुणवत्ता के इश्यूज को, गांव में जो भी पानी के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स है। तो दूसरा पॉइंट हम इस टॉपिक्स पे इस पे भी बात करेंगे कि एक मॉनिटरिंग सिस्टम डेवलप कर रहे हैं। तो जल जीवन मिशन का एक मेन पॉइंट ये है कि इसमें कम्युनिटीज को जोड़ा गया है। कम्युनिटी खुद इस जो मिशन है, इस सिस्टम को मॉनिटर कर पाएगी। तो एक कम्युनिटी बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम हम किस तरीके से बना सकते हैं अपने गांव में, हम किस तरीके से गांव में सेफ सोर्सेस को ढूंढ सकते हैं, किस तरीके से उसको आइडेंटिफाई करेंगे, किस तरीके से हम ये जो सेफ सोर्सेस हैं इनको हम सुरक्षित करें, ताकि हमारा भविष्य में ये पानी खराब ना हो जाए, जो बचे कुछ जो सेफ सोर्सेस हैं। और जो आखिरी पॉइंट हम जो जल जीवन मिशन के जो कोर्स के दौरान हम जो ऑफर कर सकते हैं वो है कि जो विलेज एक्शन प्लान बन रहे हैं, हर एक जो डिस्ट्रिक्ट में, हर एक गांव का जो विलेज एक्शन प्लान बन रहा है, उसमें हम लोग किस तरीके से पानी की गुणवत्ता के इंफॉर्मेशन, ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन किस तरीके से हम दे सकते हैं, जिससे कि विलेज एक्शन प्लान बहुत अच्छी तरीके से बन सके। ग्राउंड लेवल ये बहुत बड़ा एक समस्या आ जाती है कि काफी लोग बोलते हैं कि ग्राउंड की इंफॉर्मेशन एक्चुअल में जो सेंट्रल में प्लान्स होते हैं वहां तक नहीं पहुंचती है। तो किस तरीके से हम लोग इस जो सिस्टम है इसमें जोड़ के इस जल जीवन मिशन में हम सहयोग कर सकते हैं सक्सेसफुल के लिए। तो एक पॉइंट हमारा ये रहा, ये एक टॉपिक है जिसमें आप में से जो लोग उत्सुक हैं जल जीवन मिशन के ऊपर, BAP जो फॉर्मेट्स हैं, विलेज एक्शन प्लान्स किस तरीके से हम डेवलप करें, किस तरीके से हम लोग इसको बना सकते हैं, प्लान कर सकते हैं, तो इसके ऊपर हमारा एक कोर्स रहेगा। दूसरा वही कोर्स है, दूसरा कोर्स हम आप लोगों
के सामने जो रखने की कोशिश करेंगे वो है फ्लोरोसिस मिटिगेशन। जैसे हम लोग स्टार्टिंग से बात कर रहे हैं कि पानी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं, तो उसमें से एक है फ्लोराइड की। और गुजरात में अगर देखा जाए कि फ्लोरोसिस की समस्याएं बहुत हैं, नॉर्थ गुजरात में बहुत है, कच्छ में अंजार बचाव की साइड में बहुत ज्यादा ये इश्यूज हैं, तो दाहोद में ये सारे प्रॉब्लम्स बहुत हैं। तो किस तरीके से हम लोग आपको इस फ्लोरोसिस मिटिगेशन के टॉपिक्स में हम किस तरीके से आपको ज्यादा आपके नॉलेज को बढ़ा सकते हैं, जिस तरीके से हमने इसका भी कोर्स जो डिजाइन किया है टॉपिक्स में, उसमें से हम आपको बताएंगे कि फ्लोरोसिस क्या है, उसका जो मतलब बेसिक्स क्या है, क्या किस तरीके से हम समझ सकते हैं फ्लोरोसिस क्या है, उसकी किस प्रकार के होते हैं, फ्लोरोसिस कैसा होता है, कहाँ से आता है, तो ये बेसिक्स में आ जाएंगे। दूसरा चीज है कि हम जांच कैसे करेंगे फ्लोराइड की, और हम उसको सेहत में जो प्रॉब्लम होती है, फ्लोरोसिस के जो प्रॉब्लम्स हैं वो हेल्थ में हम किस तरीके से डिटेक्ट करेंगे। जैसे कि हमने लास्ट टाइम हमने जो कोर्स किया था प्रवाह में, तो आप लोगों को फील्ड से डेमोन्स्ट्रेट किया गया था कि किस तरीके से डेंटल फ्लोरोसिस आइडेंटिफाइड होते हैं, किस तरीके से स्केलेटल फ्लोरोसिस आइडेंटिफाइड होते हैं। तो इस तरीके से हम लोग एक एक टॉपिक्स के ऊपर बहुत ही डिटेल में जाके आप लोगों को इसके बारे में बताएंगे। दूसरा है मॉनिटरिंग सिस्टम। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमने डिटेक्ट करके छोड़ दिया, लेकिन हमको उसको मॉनिटर भी करना होता है। जैसे एक सोर्स है जिसमें शायद से गर्मियों में फ्लोराइड की मात्रा हो सकती है, लेकिन बरसात में अगर हम जाएंगे तो वो उसमें फ्लोराइड नहीं हो सकता है। तो एक मॉनिटर करने की भी बहुत जरूरी है। मॉनिटर करना हेल्थ का भी बहुत जरूरी है कि किसी का माइल्ड डेंटल फ्लोरोसिस कहीं वो ज्यादा बढ़ तो नहीं रहा है, कितने केसेस बढ़ रहे हैं एक गांव में। तो हेल्थ ऑब्जर्वेशंस के बारे में भी हम इस चीज पे मॉनिटर करेंगे। एक सिस्टम को किस तरीके से हम डेवलप कर सकते हैं, उस तरीके से हम आपको इस प्लान बताएंगे। जो सबसे मुख्य बात है कि बिहेवियर, कम्युनिकेशन एंड बिहेवियर चेंज, इसमें जो हम आईईसी मटेरियल्स या गांव में लोगों तक किस तरीके से हम ये मैसेज कि फ्लोरोसिस अगर है तो इसका रोकथाम कैसे है, हम इससे बचाव कैसे कर सकते हैं, तो इसकी जानकारी हम किस तरीके से एकदम ग्रास रूट लेवल पे, गांव लेवल पे लोगों तक ये मैसेज जा सके, तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो इसके बहुत सारे तरीके हैं बिहेवियर चेंज में, कम्युनिकेशन बिहेवियर चेंज में। दूसरा है मिटिगेशन ऑप्शंस। जैसे कि हम लोग पिछले 2 सेशंस में भी बात किए हैं कि हाँ, अभी जो हम लोग इंटरिम जो काम कर रही है मिटिगेशन ऑप्शंस में, जिसमें हम लोग लोगों का डाइट में हम लोग चेंजेस कराते हैं, लोकल फूड जिसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन सी ज्यादा होता है उसके बारे में जानकारी, जो सेफ सोर्सेस हैं उसके बारे में जानकारी। तो हम लोग मिटिगेशन ऑप्शंस जो फ्लोरोसिस मिटिगेशन के लिए जरूरी है उसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी देंगे। किस तरीके से ये एडवोकेसी में हमारी मदद कर सकता है, हमको किस तरीके से एडवोकेसी करनी है, अगर हमारे गांव में ये समस्या है तो हम इसको किस तरीके से जिला पंचायत या फिर हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये इशू को कहाँ तक हम लेके जा सकते हैं, जिससे कि हमें सरकार की तरफ से मदद हो सके। एक एडवोकेसी होनी बहुत जरूरी है, जानकारी। जो आखिरी पार्ट है कि जैसे जल जीवन मिशन में हम विलेज एक्शन प्लान्स बना रहे हैं, एक वाटर क्वालिटी को सोचते हुए इश्यूज को, ठीक उसी तरीके से हम फ्लोरोसिस मिटिगेशन में भी इंटीग्रेटेड फ्लोरोसिस मिटिगेशन प्लान बनाएंगे। किस तरीके से हम एक गांव लेवल पे ये फ्लोरोसिस मिटिगेशन प्लान बना सकते हैं, जो कि ग्राम पंचायत के थ्रू पास होगा, और एक कन्वर्जेंस के थ्रू हम इस गांव में ये सारे XYZ जो प्लान्स हैं हम इम्प्लीमेंट कर पा सकते हैं। तो एक प्लान बनाने की हम उस चीज में आप लोगों की मदद करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा तीसरा जो पार्ट है वो है किडनी स्टोन, मैनेजिंग किडनी स्टोन प्रॉब्लम्स, जो कि काफी ज्यादा हमारे कोस्टल जो एरियाज हैं वहाँ पे
ये इश्यूज निकले हैं। और प्रवाह के सेशंस में भी हमारे सामने आया है कि लोग इसके बारे में और भी विस्तार में जानना चाहते हैं कि अगर ये प्रॉब्लम है तो इसको हम किस तरीके से हैंडल करें, किस तरीके से इसका हम सॉल्यूशन की तरफ आए। तो ठीक इस तरीके से हमने इसका भी कोर्स डिजाइन किया हुआ है, जिसमें हम टॉपिक्स जो कवर करेंगे आपके साथ, जो हम बांटेंगे अपनी नॉलेज को, वो है कि हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे किडनी स्टोन होती क्या है, कैसे होती है, और इसको किस तरीके से हम इसको समझ सकें कि किसी इंसान को क्या प्रॉब्लम हो रही है और इसके इश्यूज क्या है, इसके कॉजेस क्या है, ये किस तरीके से हो रहा है, क्यों ये शरीर में ये किडनी के स्टोन्स के प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, किन किन वजह की वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स कोस्टल रीजन्स में ये बढ़ रहे हैं। और जो आखिरी पार्ट है कि अभी ये जो किडनी स्टोन्स के जो प्रॉब्लम्स हैं, इस पे हम किस तरीके से काम कर सकते हैं जिससे हम इसे रोक सकें और इसको भविष्य में इसको हम आगे और भी बढ़ने से हम बचा सकें। अगर किसी को प्रॉब्लम भी है तो उसका सॉल्यूशन कहाँ पे है। तो फिलहाल के लिए हम लोगों ने आपके पास ये 3 टॉपिक्स का एग्जाम्पल्स रखे हैं कि अभी हम लोग ये डिजाइन किए हैं कि हम ये 3 टॉपिक्स पे आप लोगों को अलग अलग तरीके से एज पर द इंटरेस्ट, जिन लोगों को जिस विषय पे इंटरेस्ट है हम उनको उस तरीके से इसके बारे में और भी जानकारी प्रदान करेंगे। या फिर अगर इन तीनों के अलावा भी अगर आप लोगों को कुछ और भी जानना है, जैसे कुछ लोगों ने आर्सेनिक कहा, लेड कहा, तो अगर इसके अलावा भी इन 3 JJM जल जीवन मिशन, फ्लोराइड मिटिगेशन और किडनी स्टोन के अलावा भी अगर आपको कोई टॉपिक्स पे जानकारी चाहिए तो आप लोग प्लीज हमें बताएं कि आपको और किन किन विषय में आप लोगों को जानकारी चाहिए, तो हम लोग उस हिसाब से उस कोर्स को डिजाइन करेंगे। और ये जरूरी नहीं है कि अगर आपकी संस्था से वॉश पे काम करिए तो आप सिर्फ वाटर एंड सैनिटेशन या फिर वाटर रिलेटेड चीजों पे ही जानते हैं। अपने व्यक्तिगत लेवल पे भी अगर आपको अपनी जानकारी को बढ़ानी है तो आप इन कोर्सेज में ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सुंदर जी। थैंक यू तनुश्री। और ये इसके लिए बहुत अच्छा रहेगा कि हम लोग सब लोग जो हमने शेयर किया आपके साथ कि आपके ऑर्गेनाइजेशन का जिस तरीके से हमने वाटर क्वालिटी के जो प्लेटफॉर्म पे हम लेकर आए हैं, उसी तरह आप एज एन इंडिविजुअल मतलब व्यक्तिगत लेवल में भी वहाँ पर आ जाएं। हम सभी को हैंडल करेंगे आज के बाद इसमें लाने के लिए, और हम ये कोशिश करेंगे कि आप सभी लोग इसमें आए तो हमारे लिए ज़्यादा आसान रहेगा कि हम ये जो पर्सनल लर्निंग जो आगे का जो सिलसिला है उसको कैसे कंटिन्यू करें। अभी पर्सनल लर्निंग इस तरह का चीज़ है कि ये जैसा जूम कॉल है तो उसमें हम लोग सीखते हैं, मगर सिर्फ इस तरीके के जूम कॉल नहीं, पर्सनल लर्निंग अलग अलग तरीके से हो सकता है। ताकि यानी कि आप हमको पूछ सकते हैं कि आपको क्या चीज़ सीखना है, हम आपको मटेरियल भेज सकते हैं, आप उसमें से खुद भी पढ़ सकते हैं और हमको सवाल भी पूछ सकते हैं, है ना। पर्सनल लर्निंग ऐसा भी हो सकता है कि आप ग्राउंड में कुछ कर रहे हैं और आपको उसमें सवाल आ रहा है और आपको उसके आगे कुछ पूछना है तो उसके सवाल का हम लोग जवाब दे सकते हैं। तो पर्सनल लर्निंग अलग अलग तरीके से हो सकता है। हम लोग कोशिश करेंगे कि एक ही प्लेटफॉर्म पे उसको लेकर आए, मगर ज़रूरी नहीं है हर बार कि वो सब कुछ एक ही प्लेटफॉर्म पे एक ही जगह पे हो, व्यक्तिगत इंडिविजुअल लेवल पे भी होना है। हम लोग कोशिश करेंगे सबको हेल्प आउट करने के लिए। तो यहाँ पे आज के लिए हमने यहाँ तक का प्लानिंग किया है आज के सेशन के लिए कि हम लोग ये फ्रेमवर्क आपको बताएं पर्सनल लर्निंग प्लान का, जिसमें मेन अगर फर्स्ट स्टेप देखें कि आप खुद अपना लर्निंग गोल बनाएं, यानी कि आपको जो सीखना है वो आप खुद तय करें, है ना। क्योंकि हम लोग का विश्वास है कि ये सभी जो इसमें पार्टिसिपेंट्स है वो भी सभी एनजीओ में काम करते हैं, बहुत साल का अनुभव है और बहुत फील्ड में प्रोग्राम्स में बहुत दिखते हैं। तो आप खुद कैपेबल है अपना लर्निंग गोल बनाने के लिए। लर्निंग गोल आपका बनाने के बाद मतलब कि आपको सीखना क्या है, उसके बाद कब तक सीखना है आपको, 3 महीने में क्या सीखना है, 6 महीने में क्या सीखना है,
आप अपना एक लर्निंग गोल उस तरीके से बनाएं। उसके बाद आपके चॉइसेस, यहाँ पे 3 चॉइस दिए हैं, और भी हो सकते हैं। क्या क्या आपको सीखना है, और भी चीजें हो सकते हैं, जैसे कि कमलेश मैंने कहा कि लेड, ऐसे और भी कई चीजें हो सकते हैं कि लोगों को सीखना हो। प्रोग्राम एक तो जेजे में, प्रोग्राम और भी कई है, जैसे कि अटल जल योजना है, और भी प्रोग्राम्स हैं। तो प्रोग्राम के अंदर से आपको वाटर क्वालिटी कैसे लेके आना है, जैसे हम लोग जो आपको शेयर करेंगे कि जल जीवन मिशन के अंदर से वाटर क्वालिटी कैसे लाना है ना, ये ऐसा नहीं कि सारा जल जीवन मिशन के ऊपर हमारा ये प्रोग्राम, हमारा ट्रेनिंग नहीं रहेगा, उसमें इनरेम भी उतना कुछ नहीं जानता है। हमारी कोशिश ये रहेगी वाटर क्वालिटी के एस्पेक्ट्स आप जल जीवन में कैसे ला सकते हैं, इतना ही फोकस हमारा रहेगा। उसी तरीके से वाटर क्वालिटी और भी अलग अलग जगहों पे आप कैसे ला सकते हैं, और आपके इंटरेस्ट और आपके नीड के ऊपर से हम इसको आगे लेके आते रहेंगे। तो ये था आज का जो पर्सनल लर्निंग प्लान ना, कि जो इसीलिए हमने इसके बारे में पहले आपको चर्चा की। आज हम लोग पहले तो पिछली बार के एक रिकैप किया था इंदुदा ने, उसके बाद हम लोग ये मेन पॉइंट पे आए। तो इसके ऊपर किसी को चर्चा करनी है, आपको अपना पॉइंट रखना है, तो प्लीज आप अभी बात कर सकते हैं, कोई भी प्लीज। सुंदर, मेरा सुनाई देते हैं? Yes. Then if anybody has got any questions on this first time of this learning, field 1, they can do now. I think my net is now working. Yes, Okay. yes. तो हम लोग लास्ट में उसमें आ सकते हैं। अभी हाँ। अभी जो हम लोग कर रहे हैं उसमें, यस प्लीज। हाँ। सुंदर जी, हाँ अर्शिदा प्लीज। बस मेरा थोड़ा ऑपरेशनल इश्यूज के बारे में पूछना था। मतलब वेरी गुड। जैसे मुझे गुजरात में भी आर्सेनिक के बारे में जानना है, तो जैसे आर्सेनिक का टेस्ट करना, उसकी किट, गांव में जाना, और वो सब मतलब कोस्टल में, मतलब भावनगर है, अमरेली है, मीठापुर, कच्छ, क्योंकि हम कोस्टल में ही काम करते हैं। तो वो कैसे मतलब ऑपरेशनल होगा, वो थोड़ा समझाइए। करेक्ट। देखिए, आर्सेनिक में हम लोग को अगर गुजरात में काम करना है तो सिस्टम अभी तक उतना उसके लिए रेडी नहीं है ना। तो आर्सेनिक में काम करने के लिए हमको टेस्टिंग किट्स, फील्ड टेस्टिंग किट्स को लेकर ही शुरू करना पड़ेगा, है ना। पहले तो ये बात है ना। तो फील्ड टेस्टिंग किट्स कहाँ से मिलेगा, कौन से फील्ड टेस्टिंग किट के ऊपर हम लोग रिलाई करें, है ना, और कैसे उसको प्रोक्योर करें। सॉरी, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? क्योंकि मेरे बैकग्राउंड में काफी नॉइज आ रहा है। मेरी आवाज सुनाई दे रही है सबको? यस, क्लियर है। ओके, तो प्लीज, तो आर्सेनिक में पहले तो ये टेस्टिंग के ऊपर कि कैसे टेस्टिंग करें, कहाँ से प्रोक्योर करें, कितना लगेगा टेस्ट किट का, कौन सा टेस्ट किट अच्छा है, ये तो एक पूरा होगा। उसके बाद आर्सेनिक में ग्राउंड लेवल में लोगों के साथ अगर मिलता है आर्सेनिक, तो अगर उसको ठीक करने के लिए तो सिंपल सॉल्यूशंस भी हैं, है ना। तो कौन से सॉल्यूशंस ट्राई कर सकते हैं, क्या सॉल्यूशंस है जो आर्सेनिक में ज्यादा काम कर सकते हैं, तो वो एक पूरा एक सेक्शन हो गया। अगर आपको आर्सेनिकोसिस अगर भी देखना है, मतलब कि उसके हेल्थ प्रॉब्लम्स देखना है, कैसे उसको जांच कर सकते हैं, तो हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं। एक ये जो सेगमेंट है उसमें और भी लोगों को हम लेकर आएंगे, क्योंकि वाटर क्वालिटी नेटवर्क जो एक प्लेटफॉर्म है, आप अगर उसमें जाएंगे तो आपको आर्सेनिक भी बहुत सारा दिखेगा आज के दिन पे, है ना। उस प्लेटफॉर्म पे जाएंगे तो आर्सेनिक का इंफॉर्मेशन भी बहुत मिलेगा। तो उसमें कई लोग हैं, जैसे हम लोग पहले भी सोचे थे कि उन लोगों को यहाँ पर लाने के लिए, मगर हम लोग रुक गए क्योंकि बहुत डिटेल हो जाता है। तो हम लोग उनको भी लाएंगे एज एन एक्सपर्ट आर्सेनिकोसिस के ऊपर। फाइनली ये सारा चीज को मिलाकर कैसे काम किया जाए, है ना, ग्राउंड में, तो वो चीज हम लोग सारा चीज डिटेल में, उसमें वी कैन गो इनटू डिटेल। जिनको आर्सेनिक के बारे में जानना है ना, कि टेस्ट किट कैसे लेकर आए, फिल्टर कैसे लेकर आए, उसको बनाएं कैसे, आर्सेनिकोसिस को डिटेक्ट कैसे करें, तो ये सब टॉपिक्स उसके अंदर आएंगे। तो यही आपका ये था कि और कुछ आप प्लीज पूछिए। मतलब वही ऑपरेशनल, मतलब कि एक तो सपोज आर्सेनिक टेस्टिंग के लिए किट अगर प्रोक्योर करना है तो बिल्कुल को खुद को करना है, या इनरेम के पास इनरेम का अवेलेबल है। दूसरा, हमने जो टेस्ट किया है उसकी ऑथेंटिसिटी कहीं गवर्नमेंट लैब में अप्रूव करवाना है, और मतलब उसका थोड़ा ऑपरेशनल कैसे करेंगे वो एक समझना था। क्योंकि टेस्ट किट सिर्फ एक ही नहीं, कई हैं, तो उसमें से कौन से आप यूज कर सकते हैं, है ना। वील गो इनटू डिटेल, ये सब। श्योर, थैंक यू। बिल्कुल अर्शिदा। तो हमारा यही कहना कि जिनको अगर आर्सेनिक में जानना है तो हम लोग उसको ब्रांच आउट कर लें, क्योंकि यहाँ पर भी 54 पीपल हैं पार्टिसिपेंट्स। मोस्ट लाइकली अराउंड 45 to 50 प्रवा नेटवर्क के होंगे हमारे रिसोर्स पर्सन इनरम से, उनको छोड़कर। तो ये जो 50 लोग हैं,
उसमें से शायद 5 लोग आर्सेनिक के बारे में जानना चाहेंगे शायद, है ना। तो अब लोग वो पोल लेंगे, हम लोग वो कोशिश वो करेंगे कि आर्सेनिक में कितने, तो वो 5 लोगों के ऊपर हम लोग आर्सेनिक में डीप में फोकस करेंगे। दैट्स द प्लान। तो एनीबडी एल्स, है ना, कोई और कुछ शेयर करना चाहते हैं इसमें किस तरीके से? हाँ कृपा बेन, अगर आप कुछ शेयर करना चाहते हैं। हेलो। हाँ सुंदर भाई, मुझे ये पूछना था कि आर्सेनिक मतलब जो आयरन कंटेंट पानी में जो बोल रहे हैं, आयरन कंटेंट जो पानी में बोल रहे हैं, रेड पानी आता है और जहाँ से पानी आता है वहाँ पर पूरे पीले पीले दाग पड़ जाते हैं। हाँ। तो कच्छ रीजन में मांडवी में ये देखा गया है कि एक तरफ जो पूरा बेल्ट है वहाँ पर TDS का प्रॉब्लम ज्यादा है, पानी में खाराश है। और एक तरफ जहाँ पर मीठा पानी मिल रहा है तो उस क्लस्टर में ये आयरन कंटेंट का प्रॉब्लम है। तो आयरन कंटेंट के बारे में मैं जानना चाहती थी। हम लोगों ने कुछ थोड़ा बहुत काम भी किया है आयरन पे, तो इसमें मैं ये जानना चाहती थी कि गवर्नमेंट लैब में गांधीनगर में ही उसका टेस्ट करते हैं। अभी जैसे कच्छ में हमने करवाया तो भुज में जो लैब है वहां पर उन्होंने करके दिया था, लेकिन वो जो 13 पैरामीटर जो वो हमको करके देते हैं उसमें आयरन नहीं आता है। तो एक तो ये है कि आयरन जो है उसको रेगुलर इसमें कैसे लाया जाए, क्योंकि कच्छ जैसे रीजन में जहाँ पर ये आयरन कंटेंट की प्रॉब्लम है तो उसको रेगुलर टेस्ट में कैसे ऐड करवाया जाए। और हमने जो करवाया था उसमें ये भी बोल रहे थे कि ये आयरन नहीं है, ये तो वो मिट्टी का उसको क्या बोलते हैं, तो वही है। तो मतलब आयरन की पहचान कैसे की जाए? लोग तो समुदाय में तो वो बोलते हैं कि लाल कलर का पानी आता है और उसको वो कायो बोलते हैं, लेकिन हम वहां पर और ये भी जैसे अर्शी भाई ने पूछा कि हमने अपने से देख तो लिया कि पीला पानी है या ऐसे, तो हम कैसे उसको पहचान पाए कि ये सही मायने में आयरन का प्रॉब्लम है कि क्या है? तो आयरन के बारे में और TDS के बारे में अगर थोड़ा और डीप में जानकारी मिले तो मेरे लिए अच्छा है भारती बहन, अच्छा है आपने कि आयरन का पॉइंट उठाया। और ये मुझे काफी सरप्राइजिंग लग रहा है कि 14 पैरामीटर्स में से भी आयरन नहीं है ना। बिल्कुल होना चाहिए, बिकॉज आयरन बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। मतलब अगर जहाँ पर इसकी प्रॉब्लम है सुंदर भाई, जहाँ पर इसकी प्रॉब्लम है वहाँ तो कम से कम लेड में ये ऐड होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। तो इसको मैं 2 तरीके से देखता हूँ। एक तो है कि जानकारी है ना, कि हम लोग कि कोई चीज के बारे में जानकारी कैसे ले सकते हैं। जैसे कि आयरन के टेस्टिंग किट्स हैं ग्राउंड में, अगर करना है तो उसको यूज कर सकते हैं। वो एक लिमिट तक हमको चीजें लेंगे। अगर ये ज्यादा एक और लेवल पे देखेंगे तो ये एडवोकेसी का पॉइंट भी है ना। यानी कि हमको एज ए नेटवर्क ऐसे इतने सारे लोग, हमको ये कोशिश करनी चाहिए कि अभी इन इश्यूज पे एडवोकेसी के डायरेक्शंस भी क्या है। आई थिंक मैं एक और स्ट्रीम अगर मैं देखूं, जैसे कि हम लोग ये 3 चीज स्ट्रीम बताए हैं, और भी एक आर्सेनिक हो सकते हैं, मगर एक और स्ट्रीम जो है, डायरेक्शन जो है आगे जाने के लिए, वो एडवोकेसी का डायरेक्शन हो सकता है। यानी कि हम लोग क्या चाहते हैं एक एक जगह पे, सरकार की तरफ से, कि वाइडर सिस्टम की तरफ से, कि यूनिवर्सिटीज की तरफ से, कि कुछ बदलाव हो, है ना। और मुझे इसमें एडवोकेसी भी दिख रहा है। यानी कि जहाँ पर प्रॉब्लम है वहाँ पर तो गवर्नमेंट लैब में होना चाहिए, है ना, आयरन टेस्टिंग के लिए। तो इसमें कोई आई थिंक सोचने वाली बात ही नहीं है ना। तो ये है ना, तो वो जब तक वो नहीं होगा हम लोग ढूंढते रहेंगे, है ना, कि हमारे व्यक्तिगत लेवल पर, कि NGO लेवल पर, और वो कितने हद तक हम लोग कर पाएंगे। तो मुझे आपके कहने से ये लग रहा है कि जानकारी, नॉलेज एक साइड है, और दूसरी साइड आयन में भी हम लोग नॉलेज में इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि आयन में काम करने के लिए काफी अच्छे तरीके हैं। हाउस होल्ड लेवल में काफी सिंपल चीजें हैं जो कर सकते हैं। तो उसमें हम लोग फोकस भी कर सकते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, टेराफिल ऐसा चीज है जो घर के लेवल पर हम लोग यूज कर सकते हैं, मगर बहुत लोग हम में से जानते नहीं हैं टेराफिल के बारे में। तो इस तरीके से कई सिंपल सॉल्यूशंस हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, एडवोकेसी एक आई थिंक कॉमन कटिंग, क्रॉस कटिंग डायरेक्शन है, जिसमें अभी 2 महीने के इस कोर्स के बाद हम लोग सभी लोग कॉमनली आ सकते हैं। यस बात सुंदर भाई, और एक बताना था इसी केस को लेके कि गांधीनगर में जो GEMI का जो गवर्नमेंट लैब है वहां पर हम आयरन कंटेंट करवाते हैं तो वहां एक रिजल्ट आता है, जबकि भुज की लैब में जब हमें जरूरत पड़ने पर एक्स्ट्रा केस के तौर पर उसको लिया गया और आयरन कंटेंट जो है वो ऐड करवाया स्पेशल केस में, बाकी 13 पैरामीटर में वो नहीं आता, लेकिन उन्होंने करके दिया
तो वहां पर आयरन आया ही नहीं, तो ऐसे कैसे हो सकता है? दोनों ही गवर्नमेंट भारती बहन, ये डॉक्यूमेंट करने वाली बात है और हाँ। यही मैं कह रहा हूँ कि यही एडवोकेसी वाली बात है। हमने करीब 10 साल पहले ये चीज़ किया था फ्लोराइड के लिए। 3 जगहों में फ्लोराइड का टेस्ट किया था, 2 जगहों में सेम आया और तीसरे जगह पर एक सैंपल नहीं 8 सैंपल किए, तीसरी जगह पर एग्जैक्टली 4 टाइम्स आए। मतलब अगर आपका 2 ppm है, सॉरी अगर आपका 8 ppm है तो 2 ppm आ रहा है, अगर आपका 4 ppm है तो 1 ppm आ रहा है, मतलब एग्जैक्टली 4 टाइम्स कम आ रहा है और ये कंसिस्टेंटली था, है ना, ये लैब में। तो ये हमको, और बाद में हमने काफ़ी डॉक्यूमेंट किया इसको और उसको बदलाव लेकर आए, है ना, इस सिस्टम पे। तो ये अगेन मुझे ये लगता है कि ये डॉक्यूमेंटेशन और एडवोकेसी की बात है। ये सब हम लोग ये चीज़ कहते हैं काफ़ी बार कि ये डिफरेंसेस आ रहा है, मगर हमको ठीक से इसको डॉक्यूमेंट करना चाहिए। मतलब हमको क्या करना चाहिए, दोनों लैब्स में इतने नंबर ऑफ सैंपल्स भेजना चाहिए, उसका एक प्रोग्राम करना चाहिए, उसको डॉक्यूमेंट करना चाहिए और उसको शेयर करना चाहिए जहाँ पर शेयर होना है। तो मैं इसको इसी तरह से देख रहा हूँ भारती बहन, और सिस्टमेटिक तरीके से करना चाहिए ताकि सिस्टम में बदलाव आए। नहीं तो हम लोग सिर्फ इसको बातें ही करते रहेंगे, है ना। क्योंकि तो ये एडवोकेसी को एक प्रवाह के तरफ से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कृपा बहन से, इसको एक ऐसे डिफरेंट स्ट्रीम अभी लेके जाएं और हम लोग एक सेपरेट सेशंस एडवोकेसी पे अभी कर सकते हैं आगे जाकर। जी जी, थैंक यू। और कोर्स की शुरुआत में कई लोगों ने जैसे इंडस्ट्रियल कंटामिनेंट्स के बारे में कहा, तो अभी हम लोग उसके बारे में सुन नहीं रहे हैं। कोई किसी की इंटरेस्ट है उस डायरेक्शन पे कि जो इंडस्ट्री के अंदर से जो पोल्यूटेंट आते हैं, फैक्ट्री के पोल्यूटेंट आते हैं, हम लोग जानबूझ के इसको स्टार्टिंग में लेकर ही आए हैं क्योंकि वो काफ़ी डीप में हो जाते हैं और काफ़ी सभी लोगों के इंटरेस्ट का नहीं है। मगर क्या वो कोई संस्थाओं के इंटरेस्ट का है तो हम लोग उसको भी यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, आगे। यस, कि उसमें जानकारी लेना बहुत जरूरी है क्योंकि गांव-गांव में अलग-अलग सिचुएशन होती है। जो गांव इंडस्ट्री के पास पड़ता है उसको पानी आता है तो उसको तो ये होता ही है। तो जानकारी लेने से फिर जब गांव के साथ काम करते हैं तो आगे ले जाने में अच्छा रहता है। आई थिंक भारती बहन, हम लोग ये एक और भी कर सकते हैं कि आई थिंक एज ए प्रवाह हम लोग एक डिस्कशन भी कर सकते हैं इस सेशन के बाहर भी, कि हम अभी ये जो बेसिक जो बिल्ड हुआ है वाटर क्वालिटी के ऊपर बेसिक नॉलेज और इंटरेस्ट, उसको एज अ प्रवाह, ऐसे इतने ऑर्गेनाइजेशन हम लोग आगे कैसे लेके जाएं। क्योंकि एक तो नॉलेज मिलना एक बात है, दूसरा है कि उसको डेटा ग्राउंड से लाकर उसके ऊपर एक्शन करना, है ना। तो वो सभी संस्थाएं खुद से ही नहीं कर सकते। हमको कई लोग सामने से अप्रोच भी किए हैं, हमको फोन कॉल्स भी आए हैं अलग अलग इंडिविजुअल मेंबर्स से। तो मैं कृपा बहन को यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम लोग इसको एक अलग तरीके से स्ट्रेटेजाइज करें। ये शायद अगले 2 महीने में इसका ऑन द ग्राउंड नहीं हो पाएगा, मगर हम लोग अभी से सोचना शुरू करेंगे तो देन लॉन्ग टर्म हम लोग ऐसे गुजरात वाइड हम लोग एक वाटर क्वालिटी का प्रोग्राम एस्टेब्लिश कर सकते हैं ग्राउंड में, एज ऑल ऑर्गेनाइजेशंस टुगेदर, है ना। तो उसके भी हम लोग को लॉन्ग टर्म तैयारी और प्लानिंग अभी से शुरू करना चाहिए। ये जो हम लोग अभी इंटरेक्शन कर रहे हैं, कोर्स कर रहे हैं, वो एक लेवल पे है, मगर एज अ वाइडर नेटवर्क हम लोग डेटा कलेक्शन, एडवोकेसी और एक्शन, इसके ऊपर कैसे स्ट्रेटेजाइज करें, प्लानिंग करें, वो आई थिंक हम लोग को अलग से एक फोन कॉल, अलग से एक डिस्कशन करके अभी इस स्टेज में ये सही रहेगा ना करना। ठीक है, तो किसी और को कुछ ऐड करना है तो अभी इंदुदा ने जैसा कहा उनका इंटरनेट ठीक है, तो किसी को उन्होंने जो कहा, जैसे पिछली बार का जो उन्होंने शुरू में कहा, बेसिकली वो फील्ड टेस्टिंग के बारे में बात कर रहे थे। किसी को उनके लिए सवाल है तो पूछ सकते हैं। मैं सुंदर भाई इस पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही थी कि इंडस्ट्रियल वाला जो है ना, तो वो वहाँ के जो गांव वाले पानी समिति है उनको क्या क्या तकेदारी रखने हैं या उनसे इंडस्ट्री के साथ कैसे डील करना है, वो पॉइंट ऑफ व्यू से हम अगर उसको ले जाए तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी बन जाती है। और ओके भारती बहन, आई थिंक हम लोग ये नोट डाउन करते हैं अभी ये सभी को, अपार्ट फ्रॉम द 3 थिंग्स ये सभी और चीज़ें भी नोट डाउन कर रहे हैं। मुझे समझ में आया कि जहाँ पर भी ये इश्यूज हैं तो उसमें सिस्टम के अंदर से, पानी समिति के अंदर से, पंचायत के अंदर से कैसे इसको अप्रोच करें, क्या स्टेप्स हैं इसमें और कैसे इसको आगे लेके जाएं, ना,
ताकि इंडस्ट्री से ये सॉल्यूशन लाए, सोशल रिस्पांसिबिलिटी। वेरी गुड, ठीक है, नोटेड डाउन। आई थिंक और इसमें केस स्टडीज भी हैं जो ला सकते हैं हम लोग। ओके, गॉट इट, थैंक यू। एनीथिंग एल्स, एनी क्वेश्चंस? किसी के लिए भी, किसी का कोई भी सवाल अभी तक के पूरे प्रोग्राम में? नहीं तो आज हम लोग जो बात कर रहे हैं पर्सनल प्लान्स पे, वाटर क्वालिटी नेटवर्क के बारे में, उस प्लेटफॉर्म के बारे में, कोई भी चीज़ के बारे में कुछ सवाल, कुछ सजेशन, तो प्लीज़, तो समय है अभी, बात कर सकते हैं। हेलो, यस। मैं भारतीय CSPC थी। मुझे ये बोलना था कि प्रवाह के नेटवर्क के साथ जितनी भी संस्थाएं जुड़ी हुई हो, कहीं ना कहीं वो पानी के मुद्दे पे काम कर रहे हैं। तो एक ये हो सकता है कि जैसे किसी एक या दो एरिया ऐसे हैं जिसमें सेम प्रॉब्लम है, जैसे कि आयरन का हुआ, तो किसी और संस्था ने किसी और रीजन में अगर उसको रिमूव करने के लिए या कम करने के लिए कुछ काम किया हो, तो दूसरी संस्था जो है वो वहां से सीख सकते हैं, वो हेल्प कर सकते हैं कि यहाँ पर हम उसको रिमूव करने के लिए, कम करने के लिए क्या काम कर सकते हैं, मतलब उनका अनुभव कैसा रहा। तो उस तरह से एक माहिती जो जानकारी है उसका हम एक ये कर सकते हैं, शेयरिंग। बहुत अच्छा बोला भारती बहन आपने। ऐसा ही नहीं कि सिर्फ शेयरिंग करना है, लेकिन ऑन ग्राउंड मतलब फील्ड में भी एक दूसरे को अमलीकरण में भी सपोर्ट कर पाए तो अच्छा है। बहुत अच्छा बोला है भारती बहन। जैसे कि आप लोग जो कच्छ में आयन में काम कर रहे हैं, तो कैसे वो जो जानकारी है वो दूसरे लोगों तक पहुंचे। एक तरीके से वाटर क्वालिटी नेटवर्क प्लेटफॉर्म का ये उद्देश्य है कि ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन हम लोग वहाँ पर लेकर आए। जैसे कि अगर सिंपल केस स्टडी अगर आपका है तो हम लोग आपको हेल्प करेंगे उसको कैसे वहाँ पर लेकर आने के लिए, है ना। उसको ऐसे वीडियो स्टोरी लेकर आ सकते हैं, उसको ऐसा केस स्टडी स्टोरी लेके आ सकते हैं केस स्टडी के टेम्पलेट में। तो हम लोग उसमें हर एक के साथ आपके साथ काम कर सकते हैं कि कैसे आप कॉन्ट्रीब्यूशंस करें आपके काम के बारे में, ताकि वो जानकारी दूसरे तक पहुंचे भी। और दूसरी बात जो आपने कहा कि ऑन फील्ड भी, है ना, कि जैसे कि एक जो जगह में जो काम हो रही है तो उसको ऑन फील्ड हो रहा है तो दूसरे लोग आके उसको कैसे देखें। तो बहुत अच्छा आपने ये कहा है कि जो इनोवेशन, जो ऑल फील्ड डेमोन्स्ट्रेशंस एक पार्टनर जो कर रहे हैं वो दूसरे पर्सन कैसे उसको आगे लेकर जाए। आई थिंक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और जब तक इसको ऐसे सेपरेट टॉपिक नहीं लेते हैं तो ये नहीं होगा। तो वील नोट इट डाउन ऑल्सो कि इट्स अ सेपरेट पॉइंट टू थिंक अबाउट। थैंक यू भारती। कुछ और वो ग्राउंड वाटर को भी बिगाड़ता है ना, तो वो जानकारी सभी को मिलनी चाहिए, एज अवेयरनेस। हाँ भारती बहन, बिल्कुल बिल्कुल। और ये मैंने पिछले कल भी किसी इसमें कहा था कि आज भी, कि हम लोग ये एक तरीके का वाटर क्वालिटी जो ये बोल रहे हैं तो उसको ऐसा प्रॉब्लम ना, उसका ऐसा वाटर क्वालिटी डिफरेंट पैरामीटर्स देखते हैं। एक दूसरे ग्राउंड वाटर की तरफ से अगर हम लोग देखें तो ग्राउंड वाटर को मॉनिटर करने के लिए भी वाटर क्वालिटी बहुत अच्छा चीज़ है। यानी कि वाटर क्वालिटी के जो चेंजेस हैं वो ग्राउंड वाटर के बारे में काफ़ी कुछ बताता है, एक्विफर के बारे में काफ़ी कुछ बताता है। तो वो भी एक बहुत अच्छा एक रीज़न है वाटर क्वालिटी के बारे में थोड़ा मॉनिटर करने के लिए, क्योंकि उससे सिस्टम के बारे में, आपके जो ग्राउंड वाटर सिस्टम के बारे में काफ़ी जानकारी मिलती है। थैंक यू। यस कृपा बहन, मैं देख रहा हूँ कि आपने अनम्यूट किया है, आप कुछ बोलना चाहते हैं? और वन ऑफ द अभी जो एग्रीकल्चर बिल में बदलाव आया है ना, और उसमें कंपनियां भी जुड़ जाएगी काम में, तो कंपनी ग्राउंड वाटर को कैसे ज्यादा बचा के एग्रीकल्चर को बढ़ावा दे, उस विषय में भी प्रमोशन की बहुत जरूरत रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल भारती, बिल्कुल। कोई और एनी अदर थॉट्स, किसी के कोई विचार, किसी को कुछ शेयर करना है कि आज का सेशन यहाँ पर कंक्लूड कर सकते हैं? तो देन हम लोग ये करेंगे कि प्रवाह के नेटवर्क में नितिन भाई, कृपा बेन है, उनके ज़रिए हम लोग आपके पास पहुँचेंगे और आगे का जो प्लान है उसको किस तरीके से इस प्लान को आगे लेके जाना है। कई सारे चीज़ें जो आज आए हैं बाहर, जैसे हमने तो 3 बताया था, जल जीवन मिशन, फ्लोरोसिस मिटिगेशन, किडनी स्टोन।
उसके बाद आपने जो कहा आर्सेनिक कहा, लेड कहा, है ना, ये सब चीजें जो आपने जो कहा है, आयन के बारे में कहा, इंडस्ट्री कंटेमिनेशन के बारे में, उसमें जो कहा कि स्टेप्स क्या है जो पानी समिति ले, कम्युनिटी समुदाय क्या स्टेप्स ले। बाद में जो आप लोग ने शेयर भी किया है कि ऑपरेशन लेवल में चीज़ों को कैसे करें, है ना। एक तो नॉलेज लेवल में, मगर ऑपरेशनल लेवल में जैसे कि आयन में, मगर बाकी भी चीज़ों में ऑपरेशनल लेवल में चीज़ों को कैसे लेके जाए। और जैसे कि अभी भारती बहन ने कहा कि एग्रीकल्चर का जो है ना, कि उसमें कैसे लेकर आए। और जो CSPC से भारती बहन ने कहा कि जैसे कि एक पार्टनर ग्राउंड में कुछ कर रहे हैं तो दूसरे पार्टनर तक कैसे लेके जाए, उसमें डिजिटल मोड में हम लोग कोशिश कर सकते हैं जितने हद तक आज के दिन का जो सिचुएशन है वाटर क्वालिटी नेटवर्क प्लेटफॉर्म के अंदर से, और डायरेक्टली फील्ड विजिट्स एंड जब भी ये ज़्यादा फैसिलिटेट, ज़्यादा ईजियर हो पाता है तो वो भी बहुत ज़रूरी है। एक जगह की चीज़ें दूसरी जगह में बेस्ट प्रैक्टिसेस जाना। तो एडवोकेसी का जो मैं कह रहा था कि एडवोकेसी पूरा एक डायरेक्शन है जो अभी से हमको कोशिश करनी चाहिए, वो एक स्ट्रीम है। तो इसको अलग अलग स्ट्रीम्स में डिवाइड करें हम लोग, एज अ वर्किंग ग्रुप कह सकते हैं हम लोग इसको। एंड हम लोग इसको फैसिलिटेट भी करेंगे एज वर्किंग ग्रुप्स, है ना, प्रवाह के अंदर एज सब प्रोजेक्ट्स, है ना, कि इसको एज डिफरेंट इस प्रोग्राम के अंदर से डिफरेंट प्रोजेक्ट्स जैसा भी सोच सकते हैं इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर से, ताकि हर एक प्रोजेक्ट में कई कई संस्थाएं, कई कई लोग जुड़े हुए हैं। आप मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में जुड़ सकते हैं। एक फ्लोरोसिस का प्रोजेक्ट एक किडनी स्टोन का हो सकता है, और साथ में हम लोग इसको एक लंबे टाइम तक काम करें, क्योंकि ये सब जो काम है उसमें सालों से काम करने से ही रिजल्ट मिलता है। तो हम लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म में सालों तक हम लोग साथ में काम करेंगे, यही उम्मीद है। और ये कोविड के टाइम पे रिमोट के जरिए से हम लोग जुड़े हैं, मगर इसको और आगे लेके जाएंगे हम लोग साथ में काम करने का, है ना। और अभी जो आज जो बात की है वो सभी चीज़ों पे हम लोग एक साथ कोशिश करेंगे कि कैसे पैरेलल तरीके से सेशंस हम लोग करें, है ना, ताकि लर्निंग सभी टॉपिक्स में हो। ठीक है, इट्स अ वेरी गुड समरी लाइक लास्ट इज भारती बहन किया है CSPC का दिस और ऑर्गेनाइजेशनल एक्सचेंज और द हॉरिजॉन्टल लर्निंग एंड शेयरिंग, वो चीज हमको और ज्यादा एक छोटा छोटा ग्रुप में सब ग्रुप्स करके सब प्रोजेक्ट्स अभी आप बोला उसी तरीके से ले जाए तो ये वाटर क्वालिटी की लर्निंग का ऊपर काफी चीज गुजरात में हम लोग ले जाके एक अच्छी तरीके से डेवलपमेंट कर सकता हूँ रिगार्डिंग वाटर क्वालिटी का इम्पोर्टेंस का साथ साथ आगे जाके किस तरीके से सॉल्यूशन ले आएगा वो होगा। सो दिस इज अ वेरी गुड थिंग दैट टुडे इज कमिंग अप ग्रेजुअली। थैंक यू। तो ये जो इनफैक्ट ग्राउंड टू ग्राउंड जो लर्निंग है, जैसे कि हमने झाबुआ से जो फ्लोरोसिस डिटेक्शन का आप लोग को लास्ट टाइम वीडियो जैसे कि लाइव किया था, तो हम लोग कोशिश करते हैं, कोशिश भी यही कर सकते हैं कि ग्राउंड टू ग्राउंड डिजिटल के अंदर से भी करें। यानी कि कोई ग्राउंड में कोई जगह में अगर कुछ अच्छा काम हो रहा है तो उसको हम लोग हाईलाइट कर सकते हैं इस प्लेटफॉर्म के अंदर से, कि एक है ना, कि कोई फील्ड में से इसके बारे में दिखा सकते हैं। क्योंकि जब जो लोग देखते हैं कुछ चीज़ को तो ज़्यादा इसमें एक विश्वास होता है, ज़्यादा सवाल भी होता है, और ऐसा लगता है कि मैं भी करूँ, है ना, इस चीज़ को। तो वो भी हम लोग ऐसे डिजिटल के अंदर से इसको कोशिश कर सकते हैं कि कैसे ये जो एक्सपीरियंस शेयरिंग, ग्राउंड टू ग्राउंड एक्सपीरियंस शेयरिंग भी कैसे हम लोग कर पाए। तो हम लोग शायद हर बार ये भी एक कंपोनेंट रख सकते हैं, है ना, कि ग्राउंड के अंदर से कोई एक एग्जाम्पल जो दूसरे साइड में, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम लोग हमारे प्रोग्राम में फ्लोराइड फिल्टर करते हैं, है ना, कि कई जगहों पर तो हम लोग फ्लोराइड फिल्टर को इजी बहुत आसान तरीके से डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हैं कि कैसे फ्लोराइड फिल्टर को डेमोन्स्ट्रेट बनाना, असेंबल करना, वो बहुत आसान तरीके से हम लोग ग्राउंड से सिखा सकते हैं, है ना, फील्ड के अंदर से। तो उसी की तरह आप लोग सभी लोग जो ग्राउंड में जो अलग अलग काम कर रहे हैं तो उसको फील्ड टू फील्ड बेस्ट प्रैक्टिसेस डेमोन्स्ट्रेशन करें, तो वो कंपोनेंट हम लोग यहाँ पर ला सकते हैं। बैंडविड्थ इंटरनेट जितना हमको अलाउ करता है उतना हम लोग करेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ आज के कॉल को हम लोग कंक्लूड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।